Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Now this is the session 2, which we have discussed the obesity and the results or complication of the obesity in the adults. And the summary of the previous lecture was this, that obesity is a multifactorial disorder. It is a disease, it is a chronic progressive disease. Does not only indicate the imbalance between the intake and output, but there are other factors that are operative. Although the hormones are described for the pathogenicity, it is a complicated mechanism. It is a complicated mechanism. So the disease is not very easily, it can be, you can say, evaluated, not very easily evaluated. वो कहते हैं ना कि वजन बढ़ाना आसान है, उसका घटाना मुश्किल होता है, बहुत बहुत मुश्किल होता है. आदमी को बहुत मानना पड़ता है अपने आप को. You have to see the cause, underlying cause. It is simple obesity, or it is associated with a disease which is called pathological obesity. There are two types of obesity in the adults. As an adult is concerned, no problem. You have to go certain measures, advising the patient, convincing the patient to do the diet planning and going for the exercise planning and avoiding the drugs which can cause the increment of the weight, etc. Now these are the summary of the last one. Now coming to this obesity in the children and the adults is part 2, and facilitator is Dr. Javed Sami. I am Professor Ali Haider. I am a supervisor. I am speaking on behalf of him. Now here is a revised previous discussion that we were talking in the adults. Ultimately, if the BMI is more than 39 or 40, there will be indication of the bariatric surgery. Bariatric surgery should be done in those where there are more risk factors or there are more comorbids. Even you can do after 35 if it is associated with the comorbids. The only contraindication in this bariatric surgery, which is very popular nowadays, is that the non-compliance with the medical care. Because afterwards the history will be taken that patient will be cooperative or not cooperative. If he is cooperative, then it is all right. And he can bear the side effects or after effects of that bariatric surgery. For example, the abdominal distension and diarrhea and so on. ये चीज़ नहीं है कि अंदर डाल दी आपने और उसको कर दिया, बोला कि एक महीने बाद भाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, मुझे दोबारा इसको ठीक करके दो. तो जो ऐसे लोग, उन लोगों में भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है जिनके अंदर जो है वो सर्जिकल रिस्क ज़्यादा हो, उनमें भी इसको अवॉइड करना चाहिए. आई नो अ पेशेंट कि जिसको जो है ना इसका BMI 40 था और वो आती थी मेरे पास इसके नहीं है कि भाई उसका जो है वो तकलीफ़ें, दर्द हो रहा है और गर्दन में दर्द हो रहा है, जॉइंट में दर्द हो रहा है, किसी तरह से भी नहीं जा रहा. वो तंग आके मेरे पास आ गए थे, तो मैंने उनको बताया कि आपको बariatric सर्जरी करानी पड़ेगी क्योंकि इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है, आपको कर नहीं सकेंगी. पंजाब के लोग थे, गांव के लोग थे, उनको ज़्यादा खाने पीने वाले लोग थे. मैंने उनको सिंपल जो है ना वो एक प्लेसिबो ड्रग होती है वो दे के और उनको फिज़िकली यानी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी ले किया. डाइट बता दी कि ये खाना है, ये नहीं खाना है, कितनी मकदार में खाना है, ब्लड के कौन सी चीज़ें खानी है, इस तरह की चीज़ें उन्हें बताई. ऐसे ही डिसाइडेड हो गए और ये कहा कि रोज़ाना पैदल चलो, 1 किलोमीटर चल सकती हैं, 1.5 किलोमीटर चल सकती हैं. बात ख़त्म हो गई. उन्होंने 3.5 लाख रुपए जमा करा दिए डाउ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में भी, और प्रोफेसर जावेद के अंडर ये सर्जरी होनी थी, जो मशहूर आदमी है इसके लिए ना, बariatric सर्जरी के लिए. उन्होंने जो है ना वो प्रोफेसर सर्जन जावेद के लिए इनको जाना था. 3 महीने को टाइम दिया था उन्होंने कि ये आप टेस्ट करवा के आ जाइए. 3 महीने बाद आए तो वेट किया, उस वक्त उसका वज़न जो था 116 किलो था.
वो मेरे पास आई दोबारा 3 महीने बाद उसके लिए कि मुझे फिट करें सर्जरी के लिए क्या करना है। तो उस पर 99 kg हो गया, 17 किलो वज़न कम हो गया उसका। अब अंदाज़ा लगा लीजिए 3 महीने में 17 किलो। तो मैंने कहा नहीं, आपको पीडियाट्रिक सर्जरी की अब ज़रूरत नहीं रही। और उनको पैसे जो उन्होंने जमा कराए थे वो रिवाइव करवाए, दोबारा करवा के। और मैंने कहा अगर आप इस पर जम जाएंगी तो आप 90 किलो की हो जाएंगी और 80 किलो की हो जाएंगी। जब आपकी शादी हुई थी तो आपका वज़न 75 किलो 80 किलो था। और स्मार्ट हो जाएंगी। और उनको जो है ना, आदमी को ना इनिशिएटिव देना पड़ता है। तो वो पेशेंट अब जो है ना तकरीबन 84 किलो का है। वो तो पीडियाट्रिक सर्जरी पे जा रहे थे हम, लेकिन वो हुआ ये कि हमारी बात मान ली उन्होंने और उसको अना का मसला बना लिया। उसमें अना का मसला अगर बनाया आपने तो फिर बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन इन्होंने ये किया है, WHO का क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इफेक्ट ऑफ द पीडियाट्रिक सर्जरी। क्या है, इसे चूज खुद करें भाई आप। इट हैज़ नॉट येट बीन एसोसिएटेड विद सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द ओवरऑल मोर्टेलिटी। यानी इसको करने के बाद जो है ना वो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट ओवरऑल मोर्टेलिटी में होता है क्या। दूसरा ये कहा कि एट 10 years पोस्ट प्रोसीजर इट एसोसिएटेड विद डिक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ हाइपरटेंशन। भाई हाइपरटेंशन को डिक्रीज करने के लिए इंसिडेंस वैसे ही पेशेंट को जो है, ये बी वाला तो ये है कि आपको पहले ही फ़ायदा हो जाएगा। जब आपका वेट गिरेगा, हार्ट पर लोड कम होगा, लोड कम होगा तो हार्ट रेट कम होगा, हार्ट रेट कम होगा तो बीपी भी कम हो जाएगा। 10 साल क्यों, 10 years पोस्ट प्रोसीजर ओवर 1/3 ऑफ द पेशेंट विद द डायबिटीज़ एट बेस लाइन जहाँ शुरू की गई थी, नो लॉन्गर हैड द डिजीज़। 10 साल के पोस्ट प्रोसीजर के बाद पेशेंट को, डायबिटिक पेशेंट की बात हो रही है यहाँ पे, जिनमें आपने इसको प्रोसीजर किया था, बेस लाइन पे नो लॉन्गर हैड द डिजीज़, यानी डायबिटीज़ ही ख़त्म हो गई। तीनों अट्रैक्टिव हैं। इसमें से सच्चा की क्या चीज़ है ये आप खुद निकाल लीजिए। इसके जो रिसर्च पेपर है ये कुछ सपोर्ट करते हैं, कुछ इसको सपोर्ट करते हैं, कुछ इसको सपोर्ट करते हैं। कि BCQ है, इसमें से एक को चूज़ करना पड़ता है। तो ये आप चूज़ करके बताएं कि भाई क्या है और इसका एविडेंस क्या है। इसका ये है एडवांटेजेस कि फोर्स लाइफस्टाइल आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। इसमें आदमी का खाने को भी चेहरा होता है, वो खा नहीं सकता। इम्प्रूव्ड जो है कार्डियो मेटाबॉलिक रिस्पेक्टर्स हो जाते हैं। डायबिटीज़ जो डिक्रीज़ हो जाती है, ख़त्म नहीं होती। ग्रोथ रिकवरी एंड लोअर्स द इंसिडेंस, ये मोर्टालिटी को कमी करती है। ये बात तो बिल्कुल पहले वक्त तय थी। बट फॉल्ट इसके क्या थे, सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन थी, फोर्स लाइफ स्टाइल चेंजेस थे, पेशेंट्स कैन गेट अराउंड द सर्जरी। इसमें से अब पीछे वाले वगैरह चले जाएँ, डायबिटीज़ ख़त्म नहीं होती, डिजीज़ कम हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, मैनेजेबल हो जाएगी। बी वाला जो था ये कैसे भी डिक्रीज इंसिडेंस हाइपरटेंशन, तो पहले ही हाइपरटेंशन तो पहले ही ख़त्म हो जाएगा। ये वाला रह गया अब ऑप्शन आपके पास, इम्प्रूवमेंट इन द ओवरऑल मोर्टेलिटी। ये सही बात है। देखिए इस तरह से जो है ना हम BCQ अटेंड करते हैं, उसको नंबर देते हैं कि ये ज़्यादा चांस है, इसके ज़्यादा चांस है, इसके ज़्यादा चांस है। रीसेंट एडवांसेस इन द मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी ये था कि डाइटरी प्लान करें आप, या तो फार्माकोलॉजिकल रूल्स करें, बिहेवियरल थेरेपी करें, सर्जिकल इंटरवेंशन करें और नॉन इन्वेसिव बॉडी कंटोरिंग करें। ये बहुत सारे फैंसी प्रोसीजर और भी हैं, नीचे भी छोड़ दिया है मैंने। लेकिन हर जगह जो है ना वो पैसे कमाने का मसला है। जितना आप पैसे कमाना चाहें आप पैसे कमा सकते हैं, आज़ादाना, बड़े आराम से जो है आप कमा सकते हैं। लोगों ने इसीलिए जो है ना वो ओबेसिटी क्लिनिक बनाए हैं, इसीलिए उन्होंने अट्रैक्टिव किस्म के जो है ना वो जिम बनाए हैं और बहुत कुछ बनाया है और बहुत पैसे लेते हैं उसके। बाद जगह तो ऐसे है कि 10 किलो वजन कम कराने के लोगों ने, यहाँ सेंटर है कराची में, इन्होंने कहा कि 10 लाख 1 किलो पर 10 लाख, 1 किलो पे 1 लाख लेंगे और 10 किलो पे 10 लाख लेंगे। ऐसे भी हैं सेंटर में। तो किलो जितना कम कराएंगे वो उस हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और वो क्या करते हैं कि वो डाइट बना के खुद देते हैं, आपको उसे अलाउ करते हैं कुछ चीज़ों के आप खा सकते हैं, फिर नहीं खा सकते।
असल जो है ना जिसने इनकलाब बर्पा कर दिया वो है मॉडिफाइड डैश जो है ना, ये DASH, डायट्री अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन प्रोग्राम प्लस फिजिकल एक्टिविटी। ये जो डाइट है सबसे कामयाब तरीन चीज़ है। अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च विच आई एम डूइंग इट, दिस इज द मोस्ट अट्रैक्टिव प्रोग्राम वेदर दे आर चिल्ड्रन और वेदर दे आर अडल्ट। कीटो डाइट का मसला ये है कि आप ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकते, आप कार्बोहाइड्रेट को ज़ीरो कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट की साइकिल को आप फिर क्या करते हैं, प्रोटीन के ज़रिए मुकम्मल करते हैं। प्रोटीन की जो साइकिल है बायोकेमिकल, उससे इसको एनहांस करते हैं BMR के लिए। 1 ग्राम जो है वो प्रोटीन जो है वो आपको 4 कैलोरीज देता है, जबकि 1 ग्राम जो है वो फैट कितना देता है, 9 किलो कैलोरी देता है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है वो 4 कैलोरी देता है। तो इसमें वो ये क्या करते हैं कि ज़्यादातर वो प्रोटीन को रखते हैं पेशेंट को, ज़्यादातर इतना ज़्यादा तादाद में करते हैं कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस हो जाए, यानी फोर्स कीटोन बॉडी प्रोडक्शन, एक्वायर्ड कीटोसिस करते हैं इसमें। अब कीटोसिस करने का मतलब ये है कि आपने एक एसिडिक नेचर का सब्सटेंस ब्लड में डाल दिया तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। और जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा तो वो क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में आएगा, बॉडी को डिस्टर्ब करेगा। अगर तेज़ी के साथ रिड्यूस करना है 15 दिन के लिए आप कर लें, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये कहें कि मैं सालों करूँगा, कसम खाता हूँ, हलफ उठाता हूँ, तो फिर ये होगा कि आपके अंदर डिफिशेंसी प्रोड्यूस हो जाएंगी, बहुत सारी बीमारियाँ प्रोड्यूस हो जाएंगी और फिर ये फेल हो जाएगी डाइट। ऐसी डाइट का कोई फ़ायदा ही नहीं है जो अमल ना की जा सके, मुश्किल हो, पैसा खर्च होता है इसमें, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। अब इसके प्रॉस एंड कॉन्स ये हैं कि जो डाइट के प्रॉस इसका ये कि वेट लॉस होता है, कौन इसका ये डिसएडवांटेज कि फ्यूअर कार्बोहाइड्रेट इजंट नेसेसरी अ गुड थिंग, यानी थोड़ा सा भी कार्बोहाइड्रेट वो अलाउ नहीं करते हैं, बहुत मुश्किल से अलाउ करते हैं इसमें। तो प्रोसेस का जो है ना फ़ायदा, इट माइट बी हेल्पफुल फॉर डेज स्पेंड फॉर अ गुड डेस्क जॉब, 15 दिन 20 दिन, चलो महीना लगा लें। कौन सी इसके ये है कि यू मे नॉट बी गेटिंग अनफ शुगर। अब आप क्रेप्सिटिक एसिड साइकिल को पैरालाइज कर रहे हैं तो क्या होगा फिर उसके बाद, न्यू ग्लूकोजेनेसिस हो जाएगी। प्रो अगर इसकी डिसएडवांटेज है, इट में हेल्प प्रिवेंट कैंसर। कौन से भी हैं इसके, प्रो भी हैं, ये कैंसर को प्रिवेंट कर सकती है लेकिन एक हद तक। लेकिन ऐसी भी स्टडी है जिसमें ये खुद कैंसरस एजेंट हो गया है। कौन सी है कि इसमें हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ। एंड फाइनल थॉट इसकी आप ये कि इसके कॉन्स भी ले लें और इसके प्रॉन्स भी ले लें, इसको बैलेंस करें। अगर आपके ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिलते हैं तो आप इसको ले लें, इस्तेमाल कर लें फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो रिस्क बेनिफिट रेशियो निकाला जाता है इसमें। इसके अंदर कोई रिस्क बेनिफिट रेशियो की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा 40-50 प्रोग्राम और भी लिखे हुए हैं, आप देखेंगे 15 डेज प्रोग्राम, 20 डेज प्रोग्राम, 1 मंथ, ये सब जो है ना गूगल के अंदर और आपको जो है यूट्यूब जिंदाबाद, उसमें ये सारे लिखे होते हैं और लोग अमल भी कर रहे होते हैं। बेवकूफ़ों, वो अमल करो जिसके आपको अल्टीमेट फ़ायदा हो। अल्टीमेट फ़ायदा हो जाएगा वो इससे हो जाएगा डैश। वो डायबिटीज़ के लिए भी फ़ायदा है, वो हाइपरटेंशन में भी फ़ायदा है, वो CVM में फ़ायदा है, वो पेरिफेरल डिजीज में भी फ़ायदा है, वो नेफ्रोपैथी में भी फ़ायदा है। इस प्रोग्राम का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। अगर इसको मॉडिफाइड करते हैं अगर हम अपने मुल्क के लिहाज से, तो ये बेहतरीन प्रोग्राम है। फार्माकोथेरेपी बहुत सारी दवाएं पहले इस्तेमाल की जा चुकी हैं इसके अंदर। असल में बात ये थी, एम्फेटामिन और डेसएम्फेटामिन और लॉरेंस एम्फेटामिन और फला एम्फेटामिन, ये एपेटाइट सप्रेसेंट एजेंट होते थे जो सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट है। इनको इस्तेमाल कर रहे थे वो यहाँ पे। मसला ये हुआ कि खाने वालों ने खाया तो बाकी उनकी भूख ख़त्म हो गई, ये बिल्कुल सही बात है। बहुत तेज़ी के साथ वेट लॉस हुआ, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट ये हुए कि वो हेलुसिनोजेनिक एजेंट थे। और उन्होंने कहा वेट को तो मारो गोली, अगर ये दवा खाओगे तो आपको परियां नज़र आएंगी और आप डायरेक्ट चांद पे पहुंच जाओगे। यहाँ से जो है सदर का किराया जो है 50 रुपये है,
और यहाँ से जो है ना चांद का किराया जो है वो 20 रुपये। कौन सा फ़ायदेमंद है भाई जावेद साहब, कौन सा फ़ायदेमंद है? या ये है कि आप 20 रुपये में चांद पे पहुँच जाएं, या 50 रुपये दे के आप सदर तक पहुँचे? आप खुद सोचिए। फिर उन्होंने जो है ना ड्रग्स जो है ना जो बनाई हैं, जो अप्रूव ड्रग्स हैं, कुछ तो उन्होंने पुरानी दवाएँ एम्फेटामिन, डेसमेथाम्फेटामिन और बहुत सारी और भी हैं, उनको उन्होंने बैन कर दिया। यह सीमाग्लूटाइड 2.4 मिलीग्राम की डोज में इस्तेमाल की जाती है। लीराग्लिटाइड HG2 इनहिबिटर है, ये डायबिटीज़ में इस्तेमाल होती है। ये वेट को रिड्यूस करती है और ग्लूकोज को इन्हांस करती है, कैटाबॉलिज्म को। तो कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज को इन्हांस करने से वेट रिड्यूस हो जाता है। ये इंसुलिन से इसका इफेक्ट नहीं होता, इसके रिसेप्टर जो है ना ग्लूकागॉन के, उसको अगर आप जो है ना वो करते हैं, ब्लॉक करते हैं, तो उस पर इसका इफेक्ट होता है और इस तरह से चांस मिल जाता है कि वेट को रिड्यूस कर दे। इसी तरह लीराग्लिटाइड ज़्यादा इस्तेमाल होती है, इससे ज़्यादा ये इस्तेमाल होती है। फिर फेंटरमिन ये जो हम इस्तेमाल करते थे, कहाँ कोई बता सकता है आप मुझसे? ये हम इस्तेमाल करते थे फेंटरमिन जो है, ये हम एजेंट इस्तेमाल करते थे रिडक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर में। इसके बाद टोबारामेट, ये कहाँ इस्तेमाल होता है? टोबारामेट जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं एज एंटी एपिलेप्टिक एजेंट। इनको मिला दिया उन्होंने लोवेस्ट डोज में, जिसको ER कहते हैं, एक्सटेंडेड रिलीज में। तो उसका फ़ायदा हुआ उन्हें बहुत, यानी कम से कम ये कि 3 महीने में 10% से ज़्यादा वेट रिड्यूस हो गया। बिकॉज सेंट्रली इफेक्ट करती है। ये क्या करती है, सेटाइटिस सेंटर को लेप्टिन के ज़रिए कर जाती है, दूसरी तरफ जो है वो ग्रेलिन को भी वो करती है, इन्हांस करती है। और ये नैलट्रॉक्सोन और बप्रीपियोन जो एंटी डिप्रेसेंट है, कुछ एंटी डिप्रेशन क्या करते हैं, वेट बढ़ाते हैं, कुछ एंटी डिप्रेशन वेट को कम करते हैं, लेकिन कंबाइन अगर करते हैं ये नैलट्रॉक्सोन के साथ, ये नैलॉक्सिन आपको याद है ना, आप याद होगी, नैलॉर्फिन, ये सारी चीज़ें, नैलॉक्सोन से डिराइव किया है इसको उन्होंने। जो एंटी ओपाइड एजेंट है बेसिकली बप्रीपियोन के साथ। इसको साथ अगर आपने इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ ये प्रॉब्लम है कि इसके अपने साइड इफ़ेक्ट हैं जो बर्दाश्त किए जा सकते हैं। तो बॉडी वेट लॉस इनको जो हुआ 3 to 10.8%, यानी 11% के करीब कर सकते हैं आप 3 मंथ में। तो सम स्टडीज ऑल्सो रिपोर्टेड ज़्यादा भी वेट लॉस हुआ, लेकिन उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी भी साथ की है तो हुआ 20% भी हुआ है। एक तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस का मसला है इसको इंजेक्ट करनी पड़ती है पर वीक, इसको रोज़ाना खाना पड़ता है। तो ऑर्सिलिम हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना पाकिस्तान में, जो हम ऑर्सिलेट इस्तेमाल करते हैं, जो इनहिबिटर है, आपको मालूम है कि इनहिबिटर है, लैपेस का इनहिबिटर है। उससे ये होता है कि आपको जो फैट है लॉस होता है फीसिस में और वेट रिड्यूस होता है, लेकिन कुछ लोगों में फ़ायदा करती है, कुछ लोगों में वो भी फ़ायदा नहीं करती। वो सर्जिकल इंटरवेंशन बैरियाटिक सर्जरी तो है ही है, इसके अलावा ये फैंसी सर्जरी है लिपोसक्शन, कॉस्मेटिक सर्जरी है, आपकी गानाकॉइड टाइप की ओबेसिटी है या आपकी एंड्रॉयड टाइप की ओबेसिटी है, आपकी फिगर को दुरुस्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं लिपोसक्शन। पेट जो है ना निकला हुआ अच्छा नहीं नज़र आता फीमेल को, उनकी वो चाहती हैं कमर जो है वो पतली हो जाए और वो 40 साल की औरत जो है वो 25 साल की नज़र आए, ये लोग जाते हैं लिपोसक्शन पे। प्रॉस क्या है इसका कि नॉट ओनली इज लिपोसक्शन अ सिंपल प्रोसीजर टू अंडरगो, इट हैज़ बीन प्रूवन सेफ एंड ऑल्सो रिक्वायर्स लेस डाउन टाइम। ये जो है कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, ये याद है कि WHO रिकमेंड नहीं करता, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन भी रिकमेंड नहीं करती। कौन सी ये है कि इफ अ हेल्दी लाइफ स्टाइल इज नॉट अलाउड आफ्टर द सर्जरी, रिजल्ट विल नॉट बी मेंटेन। अब ज़ाहिर है कि एक आदमी को लिपोसक्शन कर दिया और उसके बाद आपको हर हफ्ते जो है ना होटलिंग कर रहे हैं, हफ्ते में 2 मरतबा होटलिंग कर रहे हैं, तो फिर तो वो यही होगा कि दोबारा फैट डिपोज टिश्यू में जमा हो जाएगा और वो फिर वैसे ही फिगर हो जाएगी। फिर लिपोसक्शन कराओ, लिपोसक्शन 1.5 लाख से 2 लाख में होता है कॉस्मेटिक। तो अब वो है कि पैसे वाले लोग हैं वो करवाते रहते हैं, फेस लिफ्टिंग कराओ, ये कराओ, वो कराओ। इज अ पार्ट ऑफ आई विल से कॉस्मेटिक सर्जरी,
इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्लास्टिक सर्जरी। हु इज़ गुड कैंडिडेट, ये अब आपको सोचना है कैंडिडेट कौन है। जावेद आप खुद हैं, मैं हूँ, ये वो अफराद हैं जिनके जो है पीछे से ग्लूटेड एरिया में फैट जमा है, जिनका फैट या तो एब्डोमेन में जमा है, गायनेकॉइड टाइप की ओबेसिटी, एंड्रॉयड टाइप की ओबेसिटी है इनकी, उनको अच्छा नहीं लगता। तो कैंडिडेट जो है ना वो ये सोचता है कि मैं अच्छा नहीं लग रहा, ये नहीं सोच रहा कि उसके साथ किसी से व्यवस्था को नहीं सोच रहा, वो फिगर को सही करना चाहता है। कोई आदमी आना चाहता है ड्रामे में, शो बिजनेस में आना चाहता है, तो वो अपने आप को मेंटेन करेगा तो होगा ना। आपको मालूम है कि यहाँ पे एक वो हैं जो लोग ड्रामे बनाते हैं, उनकी मर्दों के बारे में शर्त ये है कि वो कम से कम 1 साल तक जिम्नेजियम कर उन्होंने किया हो, यानी जिम्नेजियम में गए हों और वहाँ जाके उन्होंने मसल्स बनाए हों। आप देखिएगा उनके ड्रामे, सारे के सारे आपको जितने भी हीरो मिलेंगे वो सारे के सारे फंटोमस यानी ऐसे मिलेंगे जो मस्कुलर लोग होंगे। और फीमेल का भी यही है कि कम से कम 6 महीने तक उन्होंने किया हो। इन हीरोइन की बात हो रही है, यानी उन्होंने एक वो रख दिया, क्राइटेरिया रखा हुआ उन्होंने। वो स्मार्ट लोग लेते हैं कि गुड कैंडिडेट क्या है, स्मार्ट। लेकिन ये नहीं सोच रहे कि इससे जो डिजीज़ेज कम हो रही हैं या हो जाएंगी, इसके छोड़ने के बाद क्या मसले खड़े हो जाएंगे, वो ये कोई नहीं सोच रहा। एक और चीज़ होती है नॉन इन्वेसिव बॉडी कॉन्टूरिंग। लाइपोसक्शन में तो आपको डालना पड़ता है, कटिंग करनी पड़ती है, फिर सक्शन देना पड़ता है। इसमें ये टिपिकल डिवाइसेज हैं जो नॉन सर्जिकल हैं, जैसे कूल स्कल्पटिंग है और स्कल्पचर श्योर है। ये लिखा हुआ है एक्सेल, ये आप जाएंगे ना गूगल में आप देखिएगा, ये बहुत पैसे लेते हैं इसके अंदर। वो क्या करते हैं कि बॉडी को इस तरह से वो मैनिपुलेट करते हैं विद द प्रोसीजर्स। ये लाइपोसक्शन का अल्टरनेटिव था और वर्क्स वाया जो है वो क्रायोलिसिस, यानी आपका मतलब ये कि आप किसी को बॉडी को अगर ज़्यादा जो है ठंडा करेंगे तो उनका ख्याल है कि लाइपोलिसिस हो जाएगी। इसमें वो भी चीज़ें आ जाएंगी जो बार बार इश्तहार दे रहे हैं, जिनका इसके अंदर यूट्यूब पे भी दे रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी दे रहे हैं। इसमें जो सोना बेल्ट और फला बेल्ट और ये बेल्टें सारी बहुत सारी बेल्टें हैं कि आपको बेल्ट बांध देंगे, उसके नीचे पसीना आएगा तो पसीना आके क्या होता है, फैट पिघल जाएगा पेट का। इंतहाई अहमकों वाली बात है। बैरेटिक सर्जरी के बारे में याद रखिए कि ये इस तरह से भी की जा सकती है, गैस्ट्रिक बैलून को डाल दिया जाए। ये जो है गैस्ट्रिक बैंड से भी होती है, आप बैंड यहाँ बांध देते हैं कि थोड़ा थोड़ा खाना ऊपर से नीचे आए, एकदम गश होकर ना आए। इसमें ये होगा रिफ्लक्स हो जाएगा। और फिर इसके साथ ये भी करते हैं कि इसके साथ बाहर जैसे बैटरी लगाते हैं ना पेस मेकर की, इसके साथ अटैच कर देते हैं पोर्ट को, कि आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहें इसको इसके अंदर आप प्रेशर क्रिएट करें बंद करने के लिए, जितना बर्दाश्त कर सकते हैं इस बैंड को। इसके अंदर एयर भर जाती है और इसको बंद कर देता है। तो गैस्ट्रिक बैंड सर्जरी कहलाती है। कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग पसंद नहीं करते। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी ज़्यादा करते हैं लोगों में जिनका 45-50 तक BMI चला गया। 200 किलो 300 किलो वजन वालों को ज़्यादा इसको करते हैं। इसमें पाउच जो होती है ये आ रहा है, ठीक है, इस वजह इसको डायरेक्ट अटैच किया उन्होंने नीचे, रॉक्स लिम कहते हैं इसको, स्टमक को सीधिया। और स्टमक में तो आएगा ही नहीं, ये जाएगा सीधा इधर नीचे। ये बैंड लूप हो गया है, बैंड लूप हो गया। अब ये डायरेक्टली ड्यूडेनम में आएगा, वहाँ पे जो कुछ इसको करना है वो कर लेगा। स्टमक का जो पार्ट है जिसको काइम बनाना था, सेमी सॉलिड फूड, वो नहीं बना सकता। अब ये बल्ब टाइप का चीज़ बनने के नीचे आएगी, कुछ चीज़ें हजम हो जाएंगी, कुछ चीज़ें स्टूल में पास हो जाएंगी, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन होगा। अब इसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन है, ब्लाइंड लूप सिंड्रोम्स कहते हैं इसको। आप यहाँ चर्ड के चांसेस हैं, यहाँ ब्लाइंड लूप के चांसेस हैं। तो ये जो है ना सर्जरी जो है ना, जो आपको बताएं बाईपास सर्जरी और सर्जरीज भी होती हैं, क्योंकि उसमें हम अपना टाइम जाए नहीं इसलिए कर रहे हैं कि फ़ायदा कोई नहीं है। आपको बैरेटिक सर्जरी करानी, सर्जन के पास भेज दें, वो इंडिकेटर देख लेगा कौन सी बेहतर रहेगी, पेशेंट से कंसर्न लेगा और कर देगा। ईटिंग डिसऑर्डर्स, सिनेरियो ये है कि 32 ईयर ओल्ड वाइफ और चेफ एग्जेक्टिव है हैविंग रिपीटिंग अटैक्स ऑफ हाइपोकैल्सीमिया एंड वोमिटिंग
सिंस 2 years नॉन हाइपरटेंसिव है और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है। प्रेजेंटली शी हैज़ ज्वाइन जिम्नेजियम, अभी अभी जिम्नेजियम भी ज्वाइन किया है। एग्जामिनेशन में BMI 38 है, जो कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा है और करीबन 40 के करीब पहुंच रहा है। ये इसका मतलब है कि सीवियर ओबेसिटी की तरफ जा रही है ये। BP 160/100 है, स्टेज 2 हाइपरटेंशन है, पेरी ऑर्बिटल ज़ैंथोमास भी हैं, कांस भी हैं, इसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस भी डेवलप हो गया है, इसके अंदर ज़ैंथोमास भी आ गए हैं, LDL कोलेस्ट्रॉल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक में है नेग्रिकांस हैं और जो है एक्सिला में लिवर जो है बिकॉज ऑफ दी नॉन एसिड नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज पैल्पेबल बिलो कोस्टल मार्जिन है। इन्वेस्टिगेशन में है कि हीमोग्लोबिन 9 ग्राम, MCV और MCH नॉर्मल है, FBH 124 है और हीमोग्लोबिन A1C इसका 6.5 है, जो हायर है थोड़ा। FBH जो है ना टच कर रहा है, लेकिन इसको आप डायग्नोस्टिक नहीं कर सकते जब तक कि आप OGTT ना करें। इम्पेयर्ड फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल है ये। टोटल कोलेस्ट्रॉल 224 है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐसे में LDL कोलेस्ट्रॉल को देखते हैं 156, ये ज़्यादा है, हम 120-125 तक रखते हैं इसको, ये रिस्क फैक्टर है। HDL 32 है, ये रिस्क फैक्टर है। DDA कम से कम 50 से कम नहीं होना चाहिए HDL कोलेस्ट्रॉल। ट्राइग्लिसराइड 245 है, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। एक तरफ तो वो एथेरोस्क्लेरोटिक को इन्हांस करेगा, वो एक अलग चीज़ है। दूसरी तरफ ये पैनक्रियाटाइटिस कर देगा, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस कर देगा और एक मुअम्मा बन जाएगा। इसलिए मैं इस मुअम्मे की बात नहीं कर रहा, जब हो जाता है तो बड़ी मुश्किलात में फंसता है आदमी। यूरिक एसिड जो है ज़्यादा है 8 मिलीग्राम। सीरम विटामिन D एंड PTH लेवल नॉर्मल, इसके नॉर्मल लेवल, D का लेवल नॉर्मल है, PTH भी नॉर्मल है। सीरम विटामिन B12 थोड़ा लो है, 9 ग्राम था, लो है। देखिए MCV भी नॉर्मल है इसका। इस तरह से बाद में ये होता है कि MCV भी आपको ज़्यादा नहीं मिलता, मैक्रोसिटिक नहीं मिलता, बाद में मैक्रोसिटिक होता है। तो होमोसिस्टीन लेवल से पकड़ते हैं इसको। सीरम विटामिन B12 को आजकल किस तरह पकड़ते हैं? होमोसिस्टीन लेवल से। व्हाट इज द क्वेश्चंस, व्हाट इज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस? ये एक पेशेंट एक आ गया है, रिपीटेड वोमिटिंग हो रही है उसको, ज़्यादा इसको बहुत कुछ हो सकता है, पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है जो इसके अंदर रिस्क फैक्टर था, APD हो सकती है इसको, कार्सिनोमा स्टमक हो सकता है इसको। रिपीटेड वोमिटिंग हो रही है ना मुसलसल, ये कह रही हो रही है, रोजाना नहीं हो रही है तो 2 दिन बाद हो रही है, और ये अटैक्स इसको आते आ रहे हैं। मज़ेदार बात ये है कि पेशेंट जो है ना ये जाता भी नहीं है किसी के पास, ये बड़ी हैरानकुन बात है। व्हाट इज़ द कॉज? इसमें हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है पेशेंट, जिसकी वजह से इसके हाथ पाँव मुड़ जाते हैं और वो क्या कहते हैं, बांटे कहते हैं इसको। लोग हैदराबाद में आप अगर हैं, बांटे का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। बांटे ये होते हैं कि आपको स्पैज़म हो रहा है लोअर लिम्स के अंदर, क्रैम्प्स जिसे कहते हैं। व्हाट फर्दर इन्वेस्टिगेशन है नीड? ज़ाहिर है आपको पूरी बॉडी को एग्जामिन करना होगा, पूरा आपको BMI आपने तो निकाल लिया, लेकिन ब्लड प्रेशर निकालना हो, फिर एंड्रॉयड ओबेसिटी है, आपको गायनोकॉइड ओबेसिटी है, फिर आपको सारे रिस्क फैक्टर इसके अलावा भी देखने होंगे, जैसे कि मैं पहले बता चुका। इसकी देखिए इसमें कहाँ फिर बैठता है ये? बुलिमिया नर्वोसा में बैठता है ये, या एनोरेक्सिया नर्वोसा में बैठता है? अभी इसकी वजन बहुत ज़्यादा है चूँकि, तो एनोरेक्सिया नर्वोसा में तो ही नहीं आता, बुलिमिया नर्वोसा आज में आता है ये। क्योंकि ये लोग खा लेते हैं, वजन भी ज़्यादा होता है, फिर क्या खुद ही निकाल देते हैं। पर्जिंग भी होता है, नॉन पर्जिंग भी होता है। अगर ये नहीं होता तो क्या लेक्सेटिव लेके निकाल देते हैं, बताते नहीं आपको ये। और बिंज ईटिंग इनका प्रॉब्लम होता है, 4 दिन से उन्होंने बहुत कम खाया है, 7वें दिन जो है वो किसी दावत में गए तो मालूम ये चला कि उन्होंने 5 दिन का पूरा खुराक मुकम्मल कर ली। 2 शीरमाल खा लिए और इसके अलावा उन्हें पुलाव, जर्दा, मीठा सब खा लिया। रिकरेंट एपिसोड होते हैं इसके अंदर, फिर छोड़ देते हैं। वो घर जाते हैं तो उल्टी कर देते हैं। ये जो था लेडी डायना को भी ये प्रॉब्लम थी, याद रखिएगा, बुलिमिया नर्वोसा था उसको, बाद में मैनेज किया गया। साइकेट्रिक प्रॉब्लम है ना ये। तो बिंज ईटिंग जो है ना इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, जबकि एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर बिंज ईटिंग नहीं होती, वो तो खाती ही नहीं है ना, वो तो
ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है, खाते ही नहीं है वो तो, और सारे विटामिन डेफिशिएंट हो जाती है, उसके हार्मोन डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, इतना हो जाते हैं कि उसको साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है उसकी, और अमेनोरिक हो जाती है, ये हाइपोमेनोरिक हो जाती है। तो इस डिजीज़ जो अभी भी बताई गई है, इसके अंदर चांस इस बात का है कि इसको बुलिमिया नर्वोसा होगा, कि उसको पता चल गया कि मुझे हाइपरटेंशन भी है, मैं खतरे में गिरफ्तार हो गई हूँ, लेकिन खाना नहीं छोड़ सकती वो। 4 दिन 5 दिन जो है ना वो बिल्कुल ना होने के बाद चिड़िया का जैसा खाना खाया, 5 बजे भेजने की, फिर वोमिटिंग कर दी। सोचें हम आपने वोमिटिंग करने का मतलब आप पोटाशियम को निकाल रहे हैं, आप एसिड को निकाल रहे हैं, मजाक नहीं है ये। और आपकी बॉडी जो है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जोन में आ रही है। अब स्पेसिफिक नॉन ये तो स्पेसिफिक है, उसकी बात की। नॉन स्पेसिफिक जो है ना नहीं होते, बहुत से डिसऑर्डर्स हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, इस क्राइटेरिया में नहीं होते। फीमेल है, पेशेंट है, रेगुलर मेंसेस है, करंट वेट इज एटलीस्ट 85% एक्सपेक्टेड है, एंड यूजेस ऑफ इनएप्रोप्रिएट कंपनसेटरी बिहेवियर आफ्टर ईटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ, थोड़ा थोड़ा खाती रहती है वो, कंपनसेटरी बिहेवियर है उसका। रिपीटेडली च्यूज करती है, स्पिट आउट लार्ज अमाउंट ऑफ फूड। माँ बाप ने कहा खाओ तो खाना तो खा लिया उसके सामने, और बाद में थूक दिया, वोमिटिंग नहीं किया, थूक दिया। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, रिकरेंट एपिसोड बिंज ईटिंग आपको मिलेगी, और फिर उसके बाद एसोसिएटेड विद ओबेसिटी होती है ये, करंटली लिस्टेड इसके अंदर जो है ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। नाइट ईटिंग सिंड्रोम, रात को जो है ना ये आता है मॉर्निंग एनोरेक्सिया में, सुबह जो है वो एनोरेक्टिक हो जाती है। क्यों हो जाती है कि रात को तो खा रही है, लोग घर में खराटे ले रहे हैं, और वो रात को बैठ के जो है ना फ्रिज से निकाल के खा रही है। इंक्रीज एपेटाइट इन द इवनिंग, इवनिंग में फिर उसको खाना पीना छोड़ दिया, इवनिंग में स्मॉल अमाउंट ले ली, और फिर उसके बाद बाहर निकाल दी। डिफ़िकल्टी स्लीप ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी आप, क्योंकि रात को का प्रोग्राम आपका क्या है, पढ़ने का प्रोग्राम है, इबादत का प्रोग्राम है, नहीं, खाने का प्रोग्राम है। पेशेंट्स कौन एमनेजिया फॉर नाइट ईटिंग, पेशेंट कैन हैव एमनेजिया फॉर नाइट ईटिंग, फिर एमनेजिया हो जाएगा उसको। जब रात को जो है जागना है, तो दिन को जो है सोना है, तो सोते वक्त तो आदमी नहीं खा सकता ना। ये सारे के सारे डिसऑर्डर जो है साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं। इसलिए मैंने ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर जो है चॉइस यूज़ किया, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट मसला है। एनोरेक्सिया नर्वोसा तो पकड़ लेते हैं हम, बुलिमिया नर्वोसा को पकड़ना मुश्किल काम होता है, इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया। चाइल्ड ओबेसिटी की बात करें, स्लोगन ये है कि टुडेज ओबीस चाइल्ड विल बी ग्रोन टू अडल्ट विद हाई मोबिलिटी एंड मोर्टेलिटी ऑफ द डिजीज। ये स्लोगन याद रखिएगा मुझसे। आज का बच्चा कल के लिए जो अडल्ट बना रहे हैं आप अपने कौम के लिए, एक अच्छा आदमी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो वो जो अच्छा आदमी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अंदर हाई मोबिलिटी है और हाई मोर्टेलिटी है। अगर चेक करना है तो ओबीस चाइल्ड को चेक करें पहले, उसको ओबीस नहीं होने दें, अगर क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं। ग्लोबल प्रेवलेंस पता कितनी है चिल्ड्रन के अंडर 5, 6.7% है इन 43 मिलियन पॉपुलेशन। पाकिस्तान के अंदर उन्होंने जो स्टडी की, अगर ये स्टडी अच्छी नहीं है ये, कि कहते हैं कि 40% चिल्ड्रन जो हैं या तो ओवरवेट हैं या फिर वो बीस हैं। अब ये है कि बच्चा जो है ना उसको खिलाने की कोशिश की जा रही होती है। मज़ेदार बच्चा ये है, फिर मैं एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ कि भोलू जो बहुत बड़े पहलवान हैं यहाँ के, 1948 का वाक़या है ये, पाकिस्तान का कराची का वाक़या बता रहा हूँ। हमारे जो उस्ताद थे जो रिटायर हुए थे, उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा कि भाई वो मेरे पास जो है उनकी वालदा आई, और उस वक्त वो बिल्कुल यंग था, वो मेरा ख्याल है उसकी उम्र कितनी होगी, 9 साल होगी। कहना मेरा बच्चा जो है गामा पहलवान, ये मशहूर है पाकिस्तान के पहलवान, ये उन्हीं की बराती है। तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा जो है ना कमज़ोर हो गया है। उन्होंने वेट किया उस बच्चे का, 9 साल के बच्चे का, तो वो आया 117 किलो। बोले मैं इसको क्यों जड़ा है वो पिलानी हो रोज़ाना एक प्याली, हुण जो है वो एक प्याली नहीं पींदा, आधी प्याली पी के छड़ देना है,
और गोश्त जो है रोज़ाना पहले 5 किलो खिला देनी थी, हूँ आधा किलो भी नहीं खा रहा, लग रहा है इस तरह है कि कमज़ोर हो गया। माओ के लिए बच्चे हमेशा कमज़ोर होते हैं, वो उन्हें खिलाने की कोशिश करती रहती हैं, वज़न वो नोट नहीं कर रही होती है, ओवर वेट हो रहा है या ओबीस हो रहा है। उनके जहन में होता है कि मोटा ताज़ा बच्चा, ये याद रखिएगा। मैंने पहले भी एक बात बताई थी कि कुछ इलाके पाकिस्तान में ऐसे हैं कि जो लड़कियां ख़ास तौर पे उनको वज़न उनको बढ़ाया जाता है। वो कहते हैं हमारे यहाँ के बिरादरी के अंदर मोटी औरत जो है भारी औरत को कोई रिश्ता हो जाता है, लेकिन सुकटी लड़की का रिश्ता आसानी से नहीं मिलता। कराची में, लाहौर के, इस्लामाबाद की बात नहीं कर रहा। यहाँ तो आपको स्मार्ट लड़की चाहिए होती है जिसका वज़न 35-40 किलो से ज़्यादा ना हो। ये उन लोगों की बात हो रही है कि जहाँ ये बिरादरियाँ एग्जिस्ट करती हैं, उनके यहाँ मोटा मर्द और मोटी औरत को पसंद किया जाता है। तो वो शुरू होता कहाँ से? चिल्ड्रन ओबेसिटी से। टर्मिनोलॉजी इन्होंने ये कहा कि परसेंटाइल से निकाली जाती है, क्योंकि छोटे भी बच्चे होते हैं ना, तो उसका क्या परसेंटाइल चार्ट निकालते हैं ये जो जेंडर के लिहाज से, और फिर ये देखते हैं कि अकॉर्डिंगली ये किस जोन में अराइव करता है। ये है जी स्टेज ज़ीरो। स्टेज ज़ीरो, पहले तो स्टेजेस सुन लीजिए। स्टेज ज़ीरो में है कि नो साइन ऑफ ओबेसिटी, नो फिजिकल सिम्टम है, इसमें कुछ भी साइकोलॉजिकल सिम्टम नहीं है, फंक्शनल कोई लिमिटेशन नहीं है इसकी, चल फिर सकता है, खेल सकता है, कूद सकता है। स्टेज 1 में ये है कि पेशेंट हैव ओबेसिटी रिलेटेड सब क्लिनिकल फैक्टर्स हैं, थक जाता है, वो भागता है, सांस फूल जाती है। माइल्ड फिजिकल सिम्टम ये है कि करंटली इसमें अभी कोई दवाई देने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझाने की ज़रूरत है, और इसमें अभी कोमॉर्बिडिटी भी कोई उसने आप नहीं कोई पकड़ पाए, ठीक है ना। ये भी माइल्ड ही हैं सारे, माइल्ड ओबेसिटी है ये। साइकोलॉजिकली जो है ना, बच्चे को कहा जाता है ओए मोटे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वो बच्चा इस पर ध्यान नहीं देता, और ये कहता है कि ठीक है अगर वो ओए मोटे करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं उनको एक ही यानी 6 बॉलों में 4 विकेट उड़ा देता हूँ, या फुटबॉल के अंदर मैं 4 गोल करता हूँ, ये तो एक भी गोल नहीं कर सकते। यहाँ पे आदमी डिप्रेस नहीं हो रहा होता। स्टेज 2 में जब हम आएंगे ना तो फिर मसले दूसरे शुरू हो जाएंगे। इसके अंदर स्टेबलिटी ओबेसिटी डेवलप हो जाती है, जो कि अभी निकाली जाएगी, और मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ जाती है इसको रोकने के लिए। अब यही बच्चे का जो है ना, आप हाइपरटेंशन आ जाएगा इसके अंदर। बच्चों को कौन देखता है बीपी, लेकिन इसमें आ जाएगा। मॉडर्न ओबेसिटी रिलेटेड साइकोलॉजिकल सिम्टम शुरू हो जाएंगे। अब वो उसको मोटा और नन्हे और मोटे और फला पहलवान, ये जुमले जो बच्चे बोलेंगे तो इसको असरात लेगा, ये असरात लेगा, उससे फंक्शनल साइकोसोमेटिक इलनेस डेवलप हो जाएगी। तो बड़ों में इतना मसला नहीं आ रहा, बच्चों में देखें कितना बड़ा मसला आ रहा है। स्टेज 3 में आएगा ये, तो पेशेंट में सिग्निफिकेंट ओबेसिटी हो जाएगी अब इसके अंदर अकॉर्डिंगली, और सिग्निफिकेंट ओबेसिटी रिलेटेड साइकोलॉजिकल सिम्टम बढ़ जाएंगे। अब ये जो है ना सोने का मसला हो जाएगा, या तो सोता रहेगा या जागता रहेगा, और अपनी स्टडी पर ध्यान नहीं देगा। सिग्निफिकेंट फंक्शनल लिमिटेशन, यानी ये दौड़ नहीं सकता, भाग नहीं सकता, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, खेल नहीं सकता सही तरह जैसे बच्चे खेलते हैं, और सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट ऑफ वेलबींग होगी, वो इंटरेस्टेड नहीं होगा। आप इसे लेके बोलेंगे चलो भाई फंक्शन में जा रहे हैं, तो वो बोलेगा मैं नहीं जाता, क्योंकि हर एक महीने बाद कपड़े उसके छोटे हो जाते हैं, उसको अफसोस हो रहा होता है इस बात का बहुत शदीद, और सबकॉन्शियस लेवल पर इफेक्ट्स होते हैं, याद रखिएगा। स्टेज 4 में तो फिर बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा कि सीवियर हो जाएगी, यही चीज़ जो ऊपर बताई गई है। सारी की सारी जो कॉम्प्लिकेशन है ओबेसिटी की, लिवर फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे, और एब्डोमिनल फैट एक्यूमुलेट हो जाएगा। इसके अलावा जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, स्नोरिंग प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, और डिसेबल हो जाएगा वो बच्चा, आम जिंदगी के लिए काबिल नहीं रहेगा। सीवियर जो है ना उसको फंक्शनल लिमिटेशंस हो जाएंगी इसकी, और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब ये सीवियर डिप्रेशन में जाएगा ये बच्चा आया, और डिप्रेशन भी वो हुआ है, इवन वो बाइपोलर का डिसऑर्डर हो जाएगा। जो हमारी स्टडी वही कहती है कि इसमें ये बच्चे जो हैं बाइपोलर के लिए बहुत फिट हैं, आगे जाके इनको बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाएगा। ये जो है ना इस तरह से निकाली जाती है। लेकिन ये जो है ना BMI
एज परसेंटाइल कहलाती है। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, अब इसको पढ़ें आप ज़रा। इसके अंदर जो है ना एज चाहिए आपको, इसके अंदर आपको हाइट चाहिए, इसके अंदर यानी BMI चाहिए आपको, हाइट वेट चाहिए। उसके तहत ये निकालते हैं कि 5th परसेंटाइल है 10, 25, 50, 75, 85, 90, 95 परसेंटाइल। अब इसको जो है ना डिवाइड कर दिया इन्होंने परसेंटाइल बेच के। ये स्टेजिंग सिस्टम जो मैंने पहले बताया था, इस पर इसको फिट करें आप। 0 का मतलब है नो पेरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये तो 50th परसेंटाइल से नीचे चला गया। ये प्री क्लिनिकल रिस्क फैक्टर आएंगे, थोड़ा सा ऊपर हो गया। क्लिनिकल कोमोर्बिडिटी इससे ऊपर हो गया। एस्टेब्लिश क्वांटिटी यहाँ पे पहुँच गया। ये जो डेंजर जोन में आ गया। ये इस तरीके से जो ना ओबेसिटी, ये एडवांटॉन ओबेसिटी स्टेजिंग सिस्टम है। असल में ये कनाडा ने बहुत काम किया इसके ऊपर। भारत कंट्री है कनाडा, उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया। चाइल्डहुड ओबेसिटी पे सबसे ज़्यादा काम है वो कैनेडियंस का है। एपिडेमिक ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी हो गई है, ख़ासतौर पर डेवलपिंग कंट्री में नहीं बल्कि डेवलप्ड कंट्री में हो गई। अब ये डबल हो रही है, देखें ट्रिपल हो रही है आफ्टर द एज ऑफ 6 to 11 years। 9 million children and youth over 6 years are obese in developed countries। हमारे यहाँ इस रेशो को थोड़ा कम कर लें। शहरों के अंदर आपको तकरीबन यही चीज़ मिलेगी ज़्यादातर, लेकिन जहाँ पे बच्चे जो हैं गाँव के हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, खेलते हैं, अपने वालिद की मदद करते हैं फील्ड्स के अंदर, तो उनमें ये चीज़ नहीं मिलेगी आपको। अब पहली बात यह है कि यहाँ पे सबसे बड़ी खाने का प्रॉब्लम है। आप खाना जो है ना वो प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं जितना उसको खाना चाहिए। बच्चा एक वक्त, आपके पास अफोर्डेबिलिटी का मसला है। तो हमारे यहाँ ये मसला है अफोर्डेबिलिटी का है कि एक वक्त खिलाते हैं बच्चों को खाना अच्छी तरह, बस थोड़ा सा नाश्ता दे देते हैं, और उनके पास पैसे नहीं होते कि वो खिला सकें। जबकि उल्टी बात जो है ना वो शहरों के अंदर है। वहाँ तो आप खुद हैं डॉक्टर जावेद साहब, आपके अपने जो नवासे हैं उनको आप देते हैं 500 रुपये, 1000 रुपये दे देते हैं कि जाओ जाके ब्रोस्ट खा लो, ये खा लो, वो खा लो, पिज़्ज़ा खा लो, KFC खाओ, इधर जाओ उधर जाओ। लेकिन आप ये एक्सेप्ट करेंगे इस बात। तो वो क्या कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे हैं और वो वज़न बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। जितना खेलना चाहिए वो नहीं करते। अब क्रिकेट में लगता है टाइम 2-3 घंटे तो लग जाते हैं, अगरचे वो भाग इतना नहीं रहे होते, लेकिन आप ये देखेंगे उनके अंदर इतनी नहीं मसला प्रोड्यूस होता है कि वो भागना नहीं पड़ता इतना उनको। बच्चा वज़न वाला भी होता है, लेकिन वो फिर भी इतना करता है, मैनेज कर लेता है। फुटबॉल वो नहीं खेल सकता, हॉकी वो नहीं खेल सकता, नहीं क्रिकेट वो खेल लेगा। क्रिकेट पर लगाते हैं उसको, वो 1 घंटे क्रिकेट नहीं करो, 2 घंटे क्रिकेट खेलो। घर के अंदर हो सके अगर जिम्नेजियम बना के दें, अट्रैक्टिव जिम्नेजियम बनाए ना उसके लिए, ताकि उसको अट्रैक्ट करे। वो साथ साथ जो है ना वो एक्सरसाइज भी करता रहे, साथ साथ सामने टीवी के ऊपर कार्टून भी आता रहे, तो बच्चा वो एक्सरसाइज भी करता रहेगा। साथ साथ ट्रेडमिल आती हैं, बच्चों की ट्रेडमिल आती हैं, बच्चों की साइकिल भी आती हैं, वो आप उस तरफ ले जाए ना उसको। फिर प्री स्कूलर्स के अंदर से बड़ा मसला ये है कि ओवरवेट ओबीस है, 5 times आर लाइकली टू बी ओवरवेट और ओबीस। ज़्यादातर स्कूल में अगर चला गया 5 साल का बच्चा, 6 साल का, तो अब अगर वो ओबीस है तो अब चांसेस के ज़्यादा होंगे अडल्ट ओबीसिटी के। ये भी रिसर्च है, ये बात सही है। और इससे ये होगा कि आगे जाके इसको प्री डायबिटिक हो जाएगा। ये पेशेंट जो है ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाएगा, कार्बोमेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। ये मसले हैं असल में। आगे जाके आपका बच्चा खतरे में गिरफ्तार हो गया। कहते ये है कि 50% डायबिटिक इंसिडेंस इन एडोलसेंस टाइप 2 वर्सेस 3% फ्यू डिकेड्स अगो। वो अफराद जो 5 साल से 12 साल के थे और जो कि ओबीस थे, उनको बाद में 50% को जो डायबिटीज़ हो गई है, फ्लॉरिश एस्टेब्लिश डायबिटीज़। इफेक्टिव ओबेसिटी ट्रीटमेंट्स कैन डिक्रीज। लेकिन अगर आप इसको मैनेज कर दें तो फिर ये मसला हल हो सकता है। जेनेटिक्स का काम है इसमें बहुत ज़्यादा, बिल्कुल है। कुछ लोगों में जेनेटिक डिसऑर्डर है, आप कुछ भी कोशिश करेंगे ओबेसिटी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कुछ अक्वायर्ड डिसऑर्डर्स हैं, कुशिंग डिजीज है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसको मैनेज कर सकते हैं काफ़ी हद तक, नॉट ऑल। फिर पोटेंशियल जीन वेरिएंट्स अफेक्टिंग द हंगर और मेटाबॉलिज्म, जैसे कि लेप्टिन जीन है,
इसी तरह से गैलिन का जीन है और दूसरी जीन्स हैं, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस के साथ काम करे तो फिर ओबीस हो जाएगा। ये वो कंडीशन है जिनको आप पढ़ेंगे तो आपको नौजिया होगा। इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखें कि जेनेटिक कंडीशन में इंपॉर्टेंट डिजीज़ है प्रेडर-विलाज सिंड्रोम। इसमें डेफनेस भी होती है, जिसमें आई प्रॉब्लम्स भी होती हैं, वेट प्रॉब्लम्स भी होती हैं और साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं। बार्डेल, बेडेल, कार्पेंटर, कोहान्स, एल्स्ट्रॉम, एल्ब्राइट, हेरेडिटरी डिस्ट्रोफी, ये सारे सिंड्रोम में एक चीज़ कॉमन है, इस सब के अंदर वेट ज़्यादा होगा, सबकी आईक्यू लेवल्स कम होंगे, वो फिज़िकली फिट नहीं हो पाएंगे, उनके अंदर जो मल्टीपल जो है ना डिसऑर्डर्स होंगे, उनके अंदर हायर रिस्क फैक्टर्स होंगे मेटाबॉलिक सिंड्रोम के। इन सब में एक ही चीज़ होगी। तो ये बच्चे जितने भी लिखे गए हैं इनको अलग अलग याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप इसको नहीं पकड़ सकते जब तक कि आप इसको स्टडी ना करें अच्छी तरीके से। तो पीडियाट्रिक्स जो है वो तक फेल हो जाते हैं। कोई बच्चा आपके पास आया है जिसका आईक्यू लेवल कम है, वो इंटरेस्ट नहीं लेता सराउंडिंग में, वो बैठा रहता है ज़्यादातर, वज़न भी उसका ज़्यादा हो गया है और उसको अंदर जो है वो उसका लिवर इलाज है, उसका स्प्लीन इलाज है, वगैरह वगैरह वगैरह, और उसकी डिस्टर्ब्ड बायोकेमिकल मार्कर्स हैं, तो आप समझ लें इनमें से कोई ना कोई होगा। ये जेनेटिक कंडीशन है। उम्र जो है 2 साल है। सिंगल म्यूटेट जीन म्यूटेशन में लेप्टिन का मैंने पहले भी बता दिया था, रिसेप्टर का प्रॉब्लम आता है, जेनेटिक है। और प्रो ओपियो मेलाटोकॉटिनिन है, ये वो है जो प्रिकर्सर है स्टेरॉइड का। ये जो होता है ये ब्लॉक कर देता है, आगे स्टेरॉइड में कन्वर्ट नहीं होता। अगर खाली एक्ट करेगा तो ये सिर्फ काम ये करेगा, लिपिड डिपोजिशन करेगा। और इसी तरह मेलानोकॉटिन 4 रिसेप्टर, ये भी पकड़ा है लोगों ने। इसका जो रिसेप्टर है उसकी अगर प्रॉब्लम आ जाएगी तो इवन जो है ना वो हाइड्रोकॉर्टिसोन के अपना इफेक्ट है वो खो देगा, बल्कि वो साइकिल को ले जाएगा, लिपिड की लाइपोजेनेटिक साइकिल में ले जाएगा। तो इतना याद रखना आप लोगों के लिए काफ़ी होगा, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। की फैक्टर्स ऑफ द चाइल्ड ओबेसिटी एक्वायर्ड में क्या होगा, हाई कैलोरी डाइट्स अनलिमिटेड ऑफर्ड बाय द केयरटेकर। वो मैंने अभी मिसाल दे दी कि आपने 500 रुपये 1000 रुपये बच्चा ले गया, खूब खाया पिया उसने, ये आपकी गलती है भाई। घर में खाने भी ऐसे पका रहे हैं आप, खिलाए जा रहे हैं कि बच्चा अच्छा तगड़ा हो जाएगा। फिजिकल इनएक्टिविटी है कि आपने लैक ऑफ इंकरेजमेंट, उसको कहा ही नहीं कि भाई खेलो कूदो क्या करो, अगर वो टाइम ही नहीं है इतना। और स्कूल वाले भी जो है ना इस पर इंसेंसिस नहीं करते, वो पीटी मास्टर रख लेते हैं, 5-10 मिनट की एक्सरसाइज करा के बोलता है जाओ, और फिर उसके बाद जो बाहर चाट है दही बड़े हैं वो सब खाओ। ये असल में हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक्वायर्ड की प्रॉब्लम है। अपने बच्चे को तगड़ा बनाने की कोशिश ना करें, उसको हेल्दी बनाने की कोशिश करें। डिसीज प्रोन टू डेवलप इन ऑबीस चिल्ड्रन सारी की सारी हैं। मिग्रेन इनको होता है, डिप्रेशन इनको होता है, और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इनको होता है, एस्मा ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के चांसेस इनको ज़्यादा हो जाते हैं, ये जल्दी हाइपरटेंसिव हो जाएंगे, नेफ्रोपैथी डेवलप करते हैं। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम तो पहले ही बता दिया था होना ही होना है। एंड ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ और इवन जो है वो नॉन अल्कोहलिक इंस्टीट्यूट हेपेटाइटिस तक हो जाते हैं, और फिर डेथ हो जाती है इनकी लिवर सिरोसिस से। जेड इनके अंदर बहुत कॉमन है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेरा चीज़ तो वैसी कॉमन थी। और जॉइंट के ऊपर इफेक्ट सारा का सारा, वेट बेयरिंग जॉइंट है ये, उसकी वजह से फिर इनको दर्द जो है ना शुरू हो जाता है। फिर ये क्या करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी को और कम कर देते हैं, तो ये विशेष सर्कल स्टार्ट हो जाता है। मैनेजमेंट ऑफ द चाइल्ड ओबेसिटी, मेरा ख्याल है आप तो काफ़ी लोग जो है ना थक गए हैं, है ना, क्योंकि थक गए हैं तो हम इसको थोड़ा सा रोकते हैं यहाँ पे 10-15 मिनट के लिए, और फिर इसके बाद आपसे बात करते हैं, ऐसा कर लेते हैं। So we continue with the management of the child obesity after this break. Now, child obesity, they are best managed and tools are provided by the Canadian Association of Pediatrics, not by the other countries. That is the best one. Canadian Association of Peds, CAP. So these are the people who have done a lot of job on this pediatric obesity. They say that 5 years
are necessary for the management. Now this is a very complicated, to understand, although boring, very dry subject to discuss, but it is non-pharmacological basically. Advices. The first A is, what is here, let's start from here. Question mark, ask for the permission to discuss weight. A child that's brought to you, found to be overweight or obese, ask the caretakers for the weight discussion. Discuss weight, not reduction of weight. These people are जो है ना बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, और ये बच्चे जो होते हैं ये बात सुन रहे होते हैं और इनको अफसोस हो रहा होता है कि आज ये हालत आ गई हमारी कि आज हमें जो है वो डॉक्टरों के पास ले जाया जा रहा है, और हमारा जो है ना वो ये बता रहा है डॉक्टर कि भाई वज़न कम करो, और हमारी एक्टिविटी पर पाबंदी लगाई जा रही है वगैरह वगैरह। उनके जहन में ये होता है, और उनके जहन में ये भी होता है कि माशरे में वो फिट नहीं बैठ रहे। तो इसका परमिशन आप लेंगे तो फिर आगे चलेंगे ना। आस्क। सेकंड ए इज असेस करें ओबेसिटी अकॉर्डिंगली। मैंने पहले बताया कि किस परसेंटाइल में आता है, स्कोरिंग सिस्टम क्या है इसका, माइल्ड है, मॉडरेट है, क्या है, वेरी सीवियर है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। रिस्क फैक्टर्स एंड पोटेंशियल देखना है इसका। फिर एसेस करने के बाद उस पेशेंट को एसेस करें क्लिनिकली, बायोकेमिकली। जब हो जाए ये और आप डिस्क्राइब कर दें इसकी असेसमेंट कहाँ पे आई है, ये खाली ये जो है ना इसका ओवरवेट है, ये माइल्ड ओबीस है, या इसकी परसेंटाइल 50 से कितनी अबव है, और क्लिनिकल सिनेरियो उसके साथ जो स्टेजिंग सिस्टम है उस पर कहाँ बैठता है। फिर एडवाइस करें ना, ओबेसिटी रिस्क से डिस्कस करें, डिस्कस बेनिफिट्स करें एंड ऑप्शंस डिस्कस करें कि भाई तुम क्या कर सकते हो उससे, है ना। बच्चे पे छोड़ दें, कुछ वो काम कर सकता है, वो कुछ काम नहीं कर सकता, उसके बस में नहीं है। अब आप मुझसे कहेंगे जी मैं जो हूँ, ये एक आदमी सिगरेट पी रहा है उसको बोलूँ सिगरेट रोक दो, कल से पियोगे तो मारूंगा, ये तो फजूल बात है ना। नस्वार कोई खा रहा है या कोई पान खा रहा है, अब अचानक उसको बोलेंगे भाई पान खाना बंद कर दो, ये नुकसानदेह है, ये गुटखा खाना नुकसानदेह, एकदम नहीं बंद करेगा वो, उसके लिए बड़ी आपको मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ भी यही हाल है। फिर ये ए आ गया एडवाइस, फिर ए आ गया एग्री। उसने कहा ठीक है, सुन लिया। उसने कहा कि आप एक रियलिस्टिक स्मार्ट प्लानिंग उसको दें। देखें, जो एप्लीकेबल प्रोग्रामिंग है वो दें, जो नॉन एप्लीकेबल प्रोग्रामिंग है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और फिर उसके बाद क्या करें कि उसका असिस्ट करें, ए फॉर असिस्ट। उसके कौन से ड्राइवर्स हैं, कौन से बैरियर्स आ रहे हैं, ये तो नहीं मालूम आपको, तो उसमें घुसना पड़ेगा, अंदर जाके देखना पड़ेगा कौन सी चीज़ें रुकावट डाली हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान इन्हांस कर रही हैं कि माँ जो है छुप छुप के खिला रही है बच्चे को कि यार ये तो मार देगा फादर। ड्राइवर्स, इसको एजुकेशन रिसोर्सेज ऑफर करें, ऐसी जगहों पे ले जाएं जो एजुकेशन के साथ एक्सरसाइज भी होती हो और रिसोर्सेज भी हों वहाँ पे। जैसे 50% उसके अंदर फिज़िकल एक्टिविटी के ज़रिए तालीम हासिल करता है वो बच्चा, अंदाज़ा लगाइए, और 50% जो है ना नॉन फिज़िकल एक्टिविटी से तालीम हासिल करे वो। रेफर टू द प्रोवाइडर। अब प्रोवाइडर को जो है ना आपको जो इसके माहिरीन होते हैं इनके हवाले करना पड़ेगा। हमारे मुल्क में इस किस्म के कुछ इदारे हैं मौजूद जहाँ पे जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो है ना जोर दिया जाता है फिज़िकल एक्टिविटी के साथ एजुकेशन को। पहले फिज़िकल एक्टिविटी फिर एजुकेशन मौजूद है, कराची में मौजूद है। महंगे हैं इदारे ये, मगर ये करते हैं। और आप हैरान हो गए कि ऑस्ट्रेलिया जो है उसमें सबसे पहली खबर जो होती है आपके यहाँ क्या दी जाती है, पहली खबर कौन सी होती है? जब आप उठाते हैं न्यूज़ चैनल तो सबसे पहले खबर ये होती है कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ है, वज़ीर आज़म फलां है, यहाँ से वहाँ गए तो वहाँ ऐलान किया उन्होंने कि हम जो हैं वो सड़क बना 100 किलोमीटर बना देंगे, 50 किलोमीटर बनवा देंगे, महंगाई कम कर देंगे। ये खबरें पहले आती हैं। उसके बाद फिर कुछ किसी का कत्ल वतल हो गया है तो उसकी खबर दे देते हैं, फिर इंटरनेशनल की खबरें देते हैं, फिर लोकल खबरें देते हैं, और आखिरी में आने के बाद जो है ना वो खेलों की खबरें देते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया में आप जाएंगे सबसे पहली न्यूज़ जो है ना वो आपको देगा
कि आज जो है वो ईरान 7 गोल से हार गया, अगरचे बहुत अच्छा खेला लेकिन इंग्लैंड ने उसको हरा दिया। ये नहीं कहेंगे दूसरी टीम को ख़राब नहीं करार देंगे, वो स्कोर बता रहे होंगे कि 7 उसके थे, 1 उसके थे, लेकिन आगे भी इसके चांसेस हैं। ये नहीं कि ख़त्म हो गया, 0 हो गया। हौसला बढ़ाते हुए खबरें देते हैं वो, लेकिन पहली खबर जो देते हैं वो खेलों की देते हैं। क्यों देते हैं? उसके लिए देते हैं कि आपको जो है ना वो उसके बता सकें, उसके फ़वाइद बता सकें। तो इस तरह से अवेयरनेस देते हैं ना वो आपको, अवेयरनेस। तो आस्क है, असेस है, एडवाइस है, एग्री है, असिस्ट। इसमें कोई भी फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन नहीं है। एक बच्चे को फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन दे दें अगर और वो उसका आदी हो गया, जैसे फेंटामिन के साथ देते हैं तो पैरामेट को, तो वो बच्चा पूरी ज़िंदगी वही दवाई खाता रहेगा, उसके साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा हैं। या आपने ऑलिस्टेट दे दी या कोई भी दवा दे दी तो वो उस पर डिपेंडेंट हो जाएगा वो ना, फिर तो ये इस तरह से नहीं होता मैनेज। ये देखना ओबेसिटी वर्क इन्होंने किया है असल में, ये नंबर 1 वर्क है वर्ल्ड का। सबसे पहला आस्क, परमिशन ले लिया आपने, ठीक है, तो वो बच्चा कंसेंटेड है, उसके पेरेंट कंसेंटेड हैं, ये पहला स्टेप है इसका। आस्क करें, समझाएं बुझाएं, ये बच्चे का वजन ज़्यादा है। अब ADHD जो चाइल्ड आते हैं हमारे पास, उनके वाले नहीं मारे होते कि हाइपरकाइनेटिक चाइल्ड है, वो दीवार पर चढ़ जाता है, वो आपकी टेबल को लड़ देता है फिजिशियन की, वो बच्चे को पकड़ने की कोशिश करे तो उनके हाथ में ही नहीं आता। तो अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर जो होते हैं वो भी वो वालिदैन मानने को तैयार नहीं होते कि ये जो है ना अफेक्टिव डिसऑर्डर है, या ये जो है ना अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है। इस तरह यहाँ पे भी यही होता है कि वो एक्चुअली वो नहीं मान रहे होते। आप उनको समझाए भी जाएंगे तो वो मानेंगे। अगर दोनों कंसेंट्रेट होते हैं, चाइल्ड भी कंसेंट्रेट है, पेरेंट भी है, तो फिर आगे जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। क्या करना है आस्क में? नॉन जजमेंटल हो जाएं आप। जजमेंट का आपका हक नहीं है। आप तो ये ज़ाहिर एडवाइज़र है, आप कैसे जज कर सकते हैं? फ़ायदे नुकसान ही बता सकते हैं ना। और ये कितनी जल्दी वज़न गिरा देगा इसके बारे में आप ये कोई दावा ना करें, ये वज़न गिर जाएगा, लेकिन आप दावा ना करें कि भाई ये 3 महीने में मैं 10 किलो गिरा दूंगा। और मोटिवेट करें फैमिलीज़ को कि ये जो बीमारी है ये एक्चुअली इट इज़ अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेस। If it is checked out in childhood, you will be benefited in the adult age. तो मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग टेक्निक्स होती हैं जो मोटिवेटेड इसके माहिर मौजूद होते हैं। वर्कशॉप भी कराई जाती हैं, यहाँ पे नहीं कराते लेकिन यहाँ पे करा रहे होते हैं हेल्थ एजुकेशन पे या इस पे, तो लोग सो रहे होते हैं। आप देख लीजिए आके, हमेशा ऐसे ही होता है कि वो इतना बोरिंग होता है, वो ड्राई होता है। उसको आप मसाला लगा के बताएंगे ना अगर मोटिवेशनल को, उसके सेमिनार को, तो बहुत दिलचस्प पैदा हो जाएगा। इसके अंदर सिनेरियो डालें, कहानियाँ सुनाएं इसमें बीच में, तो वो लोग सुन लेते हैं। नॉन जजमेंटल का मतलब ये होता है कि ब्लेम नहीं करना, ये कि यार क्या कर दिया भाई आपने, इतना मोटा कर दिया बच्चा अपना। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन होते हैं। फिर आस करेंगे कि रेडीनेस ऑफ द चेंज। भाई रेडीनेस ऑफ द चेंज का मतलब ये कि ये जल्दी नहीं होगा, ये काम जो होता है ये कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ होता है, और ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ वेट होती है इसमें, एकदम नहीं होता। उससे आदमी जो है शुरू में जब ये काम करता है तो बॉडी लड़ती है, और फिर वेट, मिसाल के तौर पे किसी का जब 40 किलोग्राम था बच्चे का, तो वो हो जाएगा 40 किलो 4 वीक के अंदर बढ़ जाता है। वो बाद में गिरना शुरू होता है। इतना सही बात याद रखिएगा, शुरू में बढ़ता है वो। मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग करना ये जो है ना, मैंने कहा ये आर्ट है ये सब में, मोटिवेट करना। और ये ज़ाहिर है कि इसके लिए जो है ना वो लोग एक्सपर्ट हैं इसके, जो लोग इसको करते हैं मोटिवेशन। हम जो है जितना हमें नॉलेज है इसका, हम उस हिसाब से उसको सारे प्रॉस और जो है ना वो कॉन्स बताते हैं कि ये नुकसान हो जाएगा आपको, तो कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है, ये वजन गिर जाएगा। और बच्चों को जो है ना वो अपने उसमें लें, कॉन्फिडेंस में लें वालिदैन, और फिजिशियन कॉन्फिडेंस में लें कि बेटा 1 महीने बाद आओगे तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, आप खेलने कूदने के काबिल हो जाओगे, आपकी सांस नहीं फूलेगी। सिंपल क्वेश्चंस जैसे मिसाल के तौर पे, आर यू कंसर्न अबाउट योर चाइल्ड हेल्थ,
वो कहेंगे यस या नो। आर यू कंसर्न अबाउट योर चाइल्ड वेट, यस और नो। वुड इट बी ऑल राइट इफ यू डिस्कस योर चाइल्ड, अगर हम बच्चे से डिस्कस करें, आपको कोई इतराज़ तो नहीं है। ये सारी की सारी बातें पहले डिस्कस की जाएंगी। अगर आप इसमें नहीं करेंगे तो ये आपका प्रोग्राम फेल हो जाएगा। फिर असेस करें इसको, यानी रिलेटेड रिस्क और पोटेंशियल रूट कॉजेस। ओबेसिटी क्लास करें, उसको स्टेज कर लें। अब ड्राइवर्स के इसके जो है ना ओबेसिटी की ड्राइवर्स हैं, किस वजह से हुई थी ये, उसकी कॉम्प्लिकेशन हो गई हैं या नहीं है अभी, या होने वाली हैं, और बैरियर्स क्या हैं उसके अभी आगे आएंगे। रुकावटें जो पैदा हो रही हैं मैनेजमेंट में, वो भी अभी आती हैं। रूट कॉजेज जो है इनकी क्या है, वो अब आप खुद बताइए और लिखिए अपने प्रिस्क्रिप्शन पे। रूट कॉज ये है कि इस बच्चे को डॉक्टर जावेद समी अपने नवासे को 500 रुपये हर 2 दिन बाद देते हैं, ठीक ना। ये डॉक्टर अली हैदर अपने जो है पोते को 1000 रुपये हर चौथे दिन देते हैं, जाओ बेटा खाओ पियो ऐश करो। तो वो रूट कॉजेज जाना पड़ेगा आपको। फिर क्लास एंड स्टेज, आप क्लासिंग कर लें इसकी। और सीरीज सी जो है ना उसकी अपने ये देखें ना, इससे काफ़ी मिलती जुलती इन लोगों की परसेंटेज है। तो ओबेसिटी की अगर 95% आई है, सीवियर है, इसमें तो आपको लाजमी तौर पे जो है ना इंटरेक्शन करना पड़ेगा खुद, लेकिन आपके साथ पूरी कोलैबोरेटिव टीम होगी, यानी टीम वर्क होगा ये। अब उसके साथ जो 4 एम्स बैरियर हैं, वो मेंटल है, मैकेनिकल है, मेटाबॉलिक है, इंटीरियर है। ये वो स्टेज बेस करती है इन बैरियर्स के 4 एम पे, विच क्वान्टिफाई द इम्पैक्ट ऑफ ओबेसिटी ऑन द चिल्ड्रंस ओवरऑल हेल्थ। अब इसको आप निकालें, बातचीत करें और उसको एग्जामिन करें, उसको जो है ना वो बायोकेमिस्ट्री कराएं उसकी, और उसकी वैल्यू को देखें, उसकी फीलिंग्स को देखें। ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। असेस करेंगे इसकी कॉम्प्लिकेशन बैरियर्स को। 4 एम्स वर्क कर रहा था ये, मेंटल, मैकेनिकल, मेटाबॉलिक, मैल्यू ड्राइवर्स एंड कॉम्प्लिकेशन एंड बैरियर टू वेट मैनेजमेंट। ये जो आगे आ रहा है क्या है, मेंटल एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बॉडी इमेज और एफेक्शन, ये जो है जो अटेंशन डेफिसिट जो डिसऑर्डर है, इट इज़ डिसऑर्डर, हेरिडिटी डिसऑर्डर्स दे आर, एंड लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, बार बार ट्रॉमा होता है पेशेंट को। ये मेंटल जो है ना इसमें आते हैं ये सारे। बार बार गिर जाता है वो बच्चा, छोटे बच्चे की बात हो रही है, उसको बैलेंस नहीं कर पाता ना वो। ये बड़ा मौजूद है कि बच्चा जो है ना वो फ्रीक्वेंट फॉल्स हो रहे हैं उसको। इस मौजूद में बात नहीं करूँगा मैं। लेकिन मैकेनिकल में जो है वो स्लीप एपनिया है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, पिक्वेकियन टाइप का सिंड्रोम, और मस्कुलोस्केलेटल पेन है, रिफ्लक्स डिजीज़ हैं, इनकॉन्टिन्यूस यूरिन है। जब आपको फैट ज़्यादा होता है लोअर एब्डोमेन में तो प्रेशराइज करता है ब्लडर को, जल्दी फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन हो जाती है, इनकॉन्टिनेंस हो जाता है। और एनकोप्रोपेरेसिस होती है, जारी बात है ऐसे बच्चों का जो है वो खुद ब खुद डिफिकेशन हो जाता है, खुद ब खुद जो होता है वो नॉक्टर्नल नोरेसिस हो जाती है उनको। फिर इंटिट्रिगो हो जाता है। इंटिट्रिगो स्किन डिसऑर्डर है, जहाँ पे फोल्ड ऑफ स्किन होते हैं, वहाँ पे कॉर्निबैक्टीरियम मिनीसीडियम नाम है इसका, कॉर्निबैक्टीरियम मिनीसीथियम। ये कॉर्निबैक्टीरियम है जो इफेक्ट करता है वहाँ पे, और वहाँ पे खारिश बहुत होती है। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वेस्लिन को इस्तेमाल करते हैं, ड्राई कराते हैं, और कभी कभी जो है ना हम इसके अंदर जो है वो एजोल्स जो कहलाते हैं ना, एंटी फंगल विद स्टेरॉइड्स लगा देते हैं, तो 2-3 दिन में गायब हो जाता है। जब तक फोर्स मौजूद हैं, जब तक इंटिट्रिगो का मसला मौजूद है। मेटाबॉलिक में डायबिटीज है, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टेस्टिंग है, डिस्लिपिडीमिया है, आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं। हाइपरटेंशन है, फैटी लिवर के 2 डिसऑर्डर है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के साथ जो सबसे बड़ी मुसीबत है नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस है, जो कि सिरोसिस करता है। गॉल स्टोन्स इनमें ज़्यादा होते हैं, पॉलीसिस्टिक डिजीज़ अब ओवरी इनमें ज़्यादा होती है। फिर मेडिटेशन जो लेते हैं ये स्लीप के लिए लेते हैं या और चीज़ों के लिए लेते हैं, वो खुद एक मसले प्रोड्यूस करती है या वेट गेन करती है। इंटरनल मेलोडी जो है, मेलोडी मतलब अंदरूनी, पेरेंट यानी अंदरूनी बात हो रही। हेल्थ डिसेबिलिटी है, पेरेंट के बारे में बात हो रही। फैमिली स्ट्रेस है, आपस में झगड़ा है बीवी और हस्बैंड का, इनकम कम है,
गालियाँ हैं, बुलिंग है, स्कूल है, अटेंडेंस, स्कूल सपोर्ट है, नेबरिंग सेफ्टी है। वो खेलने को मैदान ही नहीं है, वहाँ पे सड़क है, वहाँ बच्चे खेल रहे हैं, किसी कोई बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, मानो चलो खेल बंद। मेडिकल इंश्योरेंस जो है ना उसको अप्लाई करना चाहिए यहाँ पे, ताकि अखराजात कम हो। और एक्सेसिबल फैसिलिटी जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं घर में, अंदर की बात हो रही है, वो आप उसको प्रोवाइड करें बच्चे को, ताकि उसको जो है ना वो एहसास कमतरी में भी ना आए वो बच्चा। फिर एंडोक्राइन की असेसमेंट करेंगे, लो ग्रोथ इसकी जो है वो पैरामीटर्स ग्रोथ के ठीक हैं, हाइपोथायरायडिज्म एक्सक्लूड करें, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी एक्सक्लूड करें, कुछ इसको एक्सक्लूड करें, एक्वायर्ड है ये तो एंडोक्राइन क्या है, मोनोजिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे ओबेसिटी ऑनसेट बिफोर द एज ऑफ 6 मंथ ऑफ एज अगर हो जाए तो मोनोजेनिक टाइप का ये डिसऑर्डर होता है, इसमें इंक्रीज एपेटाइट होती है। और ये एक्चुअली जो होता है MC4R डिफेक्ट, लेप्टिन डेफिशिएंसी से होता है, इसको भी डिस्क्राइब कर दिया उन्होंने। अब ये तो जाहिर है कि ये इसके अंदर जीन थेरेपी की जा सकती है, आप अगर चाहें तो इसको रोक सकते हैं, प्रॉब्लम रुक जाएगा यहाँ। जेनेटिक सिंड्रोम आपको बहुत सारे बता दिए थे पहले ही। डिस्मॉर्फिक फीचर होते हैं उनके, न्यूरो कॉग्निटिव डिले होता है, जिसमें प्राडर बिलाय सिंड्रोम, फलां सिंड्रोम और ये बार्डेट बैडल सिंड्रोम, एक्सट्रॉम, ये वगैरह वगैरह से इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर उनमें ये चीज़ें पाई जाती हैं, न्यूरो कॉग्निटिव डिले पाया जाता है, डिस्मॉर्फिक फीचर होते हैं, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली होती है, लेथार्जिक चाइल्ड होता है, IQ लेवल कम है, तो इसमें जो है ना इनमें से कहीं फिर बैठेगा ये। अब किसी के अंदर डायरिया ज़्यादा है, किसी के अंदर जो है वो ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर ज़्यादा होते हैं, किसी के अंदर जो है वो मेलिग्नेंसी ज़्यादा होती है, वगैरह वगैरह, ये इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इतना काफ़ी है कि जेनेटिकली डिसऑर्डर है और लोगों को भी हो चुका है फैमिली में, ऑटोसोमल रिसेसिव है या डोमिनेंट है। CNS हाइपोथैलेमिक डैमेज, ये इंपॉर्टेंट बात है कि सेंटर ही वहाँ पे है, तो हाइपोथैलेमिक ओबेसिटी कहते हैं इसको, जबकि आपके पास जो है रिसेप्टर्स डेफिशिएंट हो गए हैं। अब वो जो है ना वो ये कह रहे हैं कि जी आपके अंदर जो है बॉडी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, तो खाए जाओ, इंक्रीज एपेटाइट कर हो गई, डिक्रीज एनर्जी एक्सपेंडिचर हो गया, ड्राइव जो देता है। देखना ये हाइपोथैलेमस पर अगर बात करता हूँ मैं, अपने स्टूडेंट्स से बात करता हूँ 3rd ईयर के, तो वो बहुत टाइम लग जाता है। मैंने बाद 3-3 घंटे का लेक्चर दिया है हाइपोथैलेमस पे, और फिर डैमेज पे, उसके बाद इफेक्ट क्या आएंगे। इट में भी एसोसिएटेड विद हाइपोपिट्यूटिज्म और पैन हाइपोपिट्यूटिज्म। मसला यह आएगा कि आपके पास TSH भी कम हो गया और कोर्टिसोन भी कम हो गया साथ में, और ग्रोथ हार्मोन भी कम हो गया, ये साथ में इसको भी रखें। एक्वायर्ड में जो है ना नॉर्मल इंक्रीज ग्रोथ वेलोसिटी है, अचानक जो है ना बंदा जो है ना उसके अंदर ग्रोथ वेलोसिटी बढ़ गई है, उसके अंदर एक्वायर्ड डिजीज है। ये उम्र में होता है, खा रहा है पी रहा है आदमी, दबा के खाया जा रहा है और उसका कोई उस पर चेक नहीं है, उनके अंदर ये होता है। हाईली हेरिटेबल है ये, एक बच्चा है जो दूसरा बच्चा उसको देख के पकड़ेगा, तीसरा बच्चा उसी को फॉलो करेगा। लेकिन पहला बच्चा जो पैदा होता है अपनी माँ को पुकारता है अम्मा, तो दूसरा बच्चा भी अम्मा ही कहेगा, तीसरा बच्चा जो पैदा होगा वो भी अम्मा ही कहेगा, तो फॉलो होता है, एक पैटर्न फॉलो हो जाता है। फिर अगर पहला बच्चा है वो अच्छा तगड़ा है, मोटा है, वो खाया जा रहा है चीज़ें, तो दूसरा बच्चा भी ये काम करेगा। इंट्रायूट्रीन एक्सपोजर्स हो जाते हैं, उसकी वजह से ये डिसऑर्डर्स आ जाते हैं वजूद में। कुछ ड्रग्स हैं, कुछ और मटीरियल्स हैं, कुछ न्यूरो जो आपके सब्सटेंसेस हैं, सॉरी हार्मोन्स डिसबैलेंसेस हैं, वो अफेक्ट करते हैं इंट्रायूट्रीन लाइफ पे, और उसकी वजह से फिर ओबीस हो जाता है। असेसिंग रूट कॉजेज, और फिर असेस करें उसका कि स्लीप कैसे है उसकी, ईटिंग बिहेवियर कैसा है, कितना फिजिकल एक्टिविटी करता है, सीडेंटरी बिहेवियर तो नहीं है, कितनी ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल करता है, कितनी साइकिलिंग करता है या नहीं करता, मेंटल हेल्थ उसकी देखें, मेडिकली उसको चेक करें, उसके मसाइल को सुने। थक जाना, मिसाल के तौर पर थक जाता है, वो बहुत जल्दी थक जाता है, रात को नींद नहीं आती है, खर्राटे लेता है, सोने नहीं देता बराबर वाले को, वगैरह वगैरह। अब इसको डिस्कस करने में आएंगे तो घंटा इस पर लग जाएगा। असेस करें उसको आप ना, इन चीज़ों को जो लिखी गई हैं इनको असेस करें। एडवाइस क्या करेंगे इसके बाद, एडवाइस ये करेंगे कि रिस्क डिस्कस एंड ट्रीटमेंट बेनिफिट ऑप्शन, रिस्क बेनिफिट रेशियो निकाल लें और शुरू हो जाए। ऑब्वियसली रिस्क बता दिए आपने, उनको बता दिए, बेनिफिट्स हेल्थ भी बता दिए,
दोनों को बैलेंस करेगा वो जो उसका केयर टेकर है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होगी ये नहीं है 6 महीने में बच्चे को आपने दुबला कर दिया। और एडवाइस करें मैनेजमेंट ऑप्शंस पे। अब ऑप्शन आप देख लीजिएगा कौन से होते हैं। रिस्क आप उसको डिस्क्राइब कर दें पेशेंट को कि ये देखें अगर ये रिस्क हैं इसके अंदर, कार्डियोवास्कुलर रिस्क हैं, फला रिस्क हैं, दूसरे रिस्क हैं जो अडल्ट में होते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्क है इसका। फिर इसमें एडवाइस करें उनको कि स्लीप नॉर्मल करें, ईटिंग बिहेवियर को नॉर्मल करें, फिजिकल एक्टिविटी को, सीडेंटरी बिहेवियर को कम करें। और मेंटल हेल्थ है, बैरिएट्रिक सर्जरी की अगर नीड हो तो उससे फिर पूछें कि बच्चा बड़ा हो गया है और उसका वेट बहुत ज़्यादा है, उसका 98 परसेंटाइल पर आ रहा है, वो तो बिल्कुल हिलजुल नहीं सकता और बहुत जल्दी इसकी मोर्टेलिटी हो जाएगी। तो इसलिए बैरिएट्रिक सर्जरी इंडिकेटेड हो जाएगी। इससे पहले भी हिस्ट्री होगी फैमिली में डेथ की, अर्ली डेथ की, कार्डियोवास्कुलर वगैरह वगैरह, इनमें तो आपको ये ऑप्शन उठाना ही होगा। एग्री कराएं उसे किस पे, स्मार्ट प्लान पे तो अचीव हेल्थ। पेशेंट जो है आपसे हाथ मिलाएगा, ठीक है जी मैं अमल करता हूँ। कैसे? बिहेवियर गोल शुड बी SMART, स्मार्ट, स्पेसिफिक होने चाहिए। हर आदमी के लिए अलग अलग गोल होते हैं। मेजरेबल होना चाहिए, आप मेजर करते हैं कोई भी चीज़ को, आता है आप मरीज उसको मेजर करते हैं। अचीवेबल है कि अचीव कर सकता है वो गोल जो आपने दिए थे कि भाई तुम्हें जो है ना 500 जो है ना वो ग्राम वजन गिराना, ज़्यादा नहीं बोले आप। रेलिवेंट हैं क्या उसके लिहाज से? आपने बोल दिया कि जी आप आइसबर्ग खाया करो रोज़ाना बेटा, आइसबर्ग जो होता है वो 600 रुपये किलो है, तो ऐसा काम ना करें। उसकी जगह आप सस्ती चीज़ बताइए ना, और उसको इस तरह बनाइए कि पैलेटेबल हो, वो खा सके, टाइम पर खाए उसे। ये नहीं है कि हर वक्त चबाता रहे बैठ के। कि चने, वो कहते हैं ना, वो चने रखते सामने, कर्नल साहब हमारे बोलते खाए जाओ यार, इससे कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं होता। ये हर चीज़ की जो होती है वो कैलोरिक वैल्यू होती है। अगर आप कैलोरिक वैल्यू के हिसाब से आप काम करेंगे तो फिर तो बस सही है। लेकिन आप चने सामने रख दें और वो काजू मेरे सामने जो था वो सऊदी अरब में था तो 1 किलो खा गया वो टीवी पे ड्रामा आ रहा था 1 किलो। तो कह लेंगे वो तो खाता रहता हूँ मैं। यकीन करें मेरे सामने 1 महीने के बाद जो है ना उसका जो है फास्टिंग ब्लड शुगर 180 आ गया 1 महीने के अंदर। मैंने कहा तुम कब से खा रहे हो? बोला 6 महीने से तो खा रहा हूँ। आधा किलो काजू रोज़ाना खा जाता था। तो कैलोरिक वैल्यू इतनी ज़्यादा थी, इंसुलिन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं पूरी कर सका, सीधी बात है। बिहेवियर चेंज पर एग्री कराएं आप उसको। बिहेवियर, वेट लॉस एक्सपेक्टेशन जो होती है ना, अगर देखा शुरू में वेट बढ़ता है फिर बाद में घटता है और आहिस्ता आहिस्ता घटता है। अब आहिस्ता आहिस्ता घटता है और डिसपॉइंटेड हो जाता है, उसको कहें कि ये इस तरह ही घटाना है, एकदम नहीं घटाना है। इस किस्म की जो है ना जो सेंटर्स हैं वहाँ अगर आपने भेजा तो वो बहुत ही गलत लाइन पे ले जाएंगे बच्चे को। और ये याद रखिए वेट लॉस करा के रिगेन जो होता है वो डबल होता है, फिर ये भी याद रखिएगा। तो चिल्ड्रन जो है ना प्रिवेंशन स्लोइंग ऑफ द वेट गेन मे बी द BA जो है ना जुमला मेरा, प्रिवेंशन और स्लोइंग, या तो प्रिवेंट करें। मैंने से कहा कि खाली वज़न गिराने से ये नहीं है कि आप स्मार्ट हो जाएंगे। वज़न गिराने से आपको बहुत सारे फायदे हैं, वो आप एक्सप्लेन करें ना उनको। मैनेजमेंट प्लान को एक्सप्लेन करें कि भाई हम करना क्या चाह रहे हैं। हम आपके खाने के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, हम आपके जो है ना फिजिकल एक्टिविटी पे इन्हांस कर रहे हैं आपको। और ये दवाइयों की बात नहीं करें आप, मेडिकेशंस की, इन पे बात करें। द सक्सेस ऑफ द ट्रीटमेंट शुड बी मेजर्ड इन इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड वेल बीइंग। अब बच्चा अब जो आया अगले महीने 2 महीने में बहुत कुछ है। अगर जब वेट उसका जो 1 किलो गिरा है लेकिन वो पहले से बेहतर हो गया है, आप नजर 1 किलो वजन आपकी वजह से जो आपने इतनी मेहनत की थी, बोला था। लोग मुझसे कहते हैं आप बातें बहुत ज़्यादा करते हो, भाई बातें करनी पड़ती हैं ना। असिस्ट कराएं इसको, लास्ट पार्ट है ये। अब ये जो सारा आपने कह दिया, अब उसको असिस्ट भी चाहिए। अब ड्राइवर्स देखें और बैरियर्स, जो उसको नहीं मालूम कि क्या ड्राइवर्स हैं, क्या बैरियर आ रहे हैं, क्या है। असिस्ट फैमिली करें, जो असल मानते हैं कि जो घर में रह रहा है वहाँ की बातें अब निकालेंगे, उनमें ड्राइवर और बैरियर क्या है, एजुकेशन रिसोर्सेज क्या हैं, एप्रोप्रिएट प्रोवाइडर कौन है, इसका फॉलोअप कौन कराता है। ये सारी चीज़ें जो है ना आपको देखनी पड़ेंगी, घुसना पड़ेगा अंदर, फिर पता चलेंगी। फैमिली एजुकेशन ये मेन चीज़ है। माँ बाप हैं, बहन भाई, उनको पता होना चाहिए बच्चा खतरे में है। और उन बच्चों को नहीं बताएं, लेकिन उनको तो बताएं आप ये बात ना, कि कम से कम ये बहुत ख़तरे में है। और हेल्प चिल्ड्रन करें, फैमिलीज करें,
क्रेडिबिलिटी के लिए, वेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज के लिए करें, उनके लिए वर्क करें उनको। और अप्रोप्रिएट प्रोवाइडर को जो है ना आप करेंगे रेफर ना, जो जानता है ये क्या चीज़ होती है। चाइल्डहुड ओबेसिटी के अप्रोप्रिएट प्रोवाइडर होते हैं। तो ये जो है, इसलिए मैंने आपसे कहा था मल्टी मॉड्यूलर है। और ये जो अप्रोच है, ये जो है ना कोलैबोरेटिव अप्रोच है, मिल के जुल के काम करना पड़ेगा। इंटरडिसिप्लिनरी टीम होती है ये, बच्चे को बहुत अच्छी तरह से वो कैच करती है और उनको इन्हांस करती है, उनको प्यार देती है, मोहब्बत देती है, वो मदद देती है फिजिशियन से, नर्स से, डाइटिशियन से, साइकोलॉजिस्ट से, सोशल, वो हेल्थ जो होता है एप्रोप्रिएट प्रोवाइडर होता है, साइकोलॉजिस्ट वगैरह वगैरह वगैरह, इनकी मदद से जो है ना ये ड्राइव करते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो बैरियर हैं उनको वो बीच में से निकाल के फेंक देते हैं, जो रुकावटें आ रही हैं। तो फॉलोअप जो होता है लॉन्ग टर्म है, ये याद रखिएगा, 10 साल भी हो सकता है ये। और प्रोवाइडर जो होता है वो चेंज ना करें बार बार, वो उससे बच्चा मन जो है ना वो हो जाता है, अटैच हो जाता है, तो वो उसकी बात मान लेता है। वेट साइकिलिंग एंड वेट शुड नॉट बी फ्रेम्ड एज फेलियर। ये नहीं है कि आप उसको वजन बताना शुरू करते हैं हर महीने, बोलो कम हो गया, पहले से बेहतर है, आप कितना खेल रहे हैं, आप कितना खा रहे हैं, आप खुश हैं, ये बात कहिए। वेट के ऊपर जो है सारा बेस ना करें, कितना वजन गिरा है, ना ना ना, स्मार्टनेस पे, फिजिकल फिटनेस है, उसके ऊपर जो है ना वो जोर दें। तो भाई ये केस प्रेजेंटेशन में करता हूँ आखिर में आके। नर्सरी पीरियड में एक पेशेंट है, टी है उसका, और 20 इंच लेंथ थी और वेट जो है उसका 10 पाउंड था। एवरीवन हु मीट्स पेशेंट टी, जो मरीज का नाम है, कॉमन नाउ हाउ ब्यूटीफुल चाइल्ड इज, कितना अच्छा बच्चा है, कितना अच्छा कद है, कितना काठ है, कितना मोटा है, और बहुत स्ट्रांग है। और मदर जो है वो कमेंट करती है, एक्सप्रेस प्राइड करती है, अपने बच्चे पे नाज करती है। हालांकि मसला कुछ और है, या देखिए डायबिटिक मदर्स के हमेशा बच्चे होते हैं वो हैवी वेट होते हैं। तो चाइल्डहुड पीरियड में क्या हुआ कि जब चाइल्डहुड पीरियड था तो उसने जब वे किया तो 95th परसेंटाइल पे था, और हाइट 75th परसेंटाइल पे थी। तो ये मॉडरेट टू सीवियर ओबेसिटी में आ गया। अब कर क्या रहा था ये बच्चा कि फूड खा रहा था, चिप्स खा रहा था, पियर से बनानास के साथ सैंडविच खा लिए, फास्ट फूड खा लिया, पिज़्ज़ा खाने में तो फ़ख्र महसूस करते हैं लोग। वो 95 परसेंटाइल अंदाज़ा लगाइए, इस बच्चे का चाइल्डहुड पीरियड में हो गया था। अब पीडियाट्रिशियन जो है ना वो उसके पास फुल टाइम होता है, वो तो आप डिजीज़ होगी, उसने खाली ये बताया कि रेड फ्लैग साइन मौजूद है इसमें बच्चे में, और उसका ख्याल करें। बस थोड़ी सी बात करेगा वो छोड़ देगा। वो तो चबी टाइप का बच्चा हो गया, यानी भारी भरकम हो गया ये बच्चा उसके सामने, लेकिन फिर भी उसने बता दिया कि इसके आगे जाकर नुकसान हैं, बस इससे ज़्यादा बात नहीं करेगा वो। फिर चाइल्डहुड पीरियड में जो है ना वो अपना चलता रहा, स्कूल जाता रहा, और किंडरगार्टन अटेंड किया, फिर प्राइमरी स्कूल किया, फिर आज जैसे हम लोगों को क्या होता है हर जगह उसको मोटा मोटा कहा जाता था, वो नन्हे, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल करें। अब इसमें ज़्यादातर ये बच्चा क्या करता था, घर में रह, इसने कहा बाहर जाऊँगा तो लोग कहेंगे मोटा मोटा, तो घर के अंदर जो है टेलीविज़न देखता था, वीडियो गेम खेलता था, और ये नॉन सीडेंट्री हो गया, ये नॉन सीडेंट्री हो गया, विशेष सर्कल हो गया डेवलप, पेशेंट का वेट और गेन हो गया। और ये बच्चा जो था टी, ये लंबा भी हो रहा था और स्ट्रॉन्ग लाइक हिज फादर, जैसे कि वो भी लंबा था, हु इज 6 फीट टॉल, वो जो वालिद था 350 पाउंड पर, वो ये देखें ये भी जो है ना खतरे में था ऑलरेडी, लेकिन इसको पता नहीं है इसके साथ क्या होने वाला है बाप के साथ। वो तो कह रहा मेरा बच्चा मेरी तरह से ग्रो कर रहा है। यही चाइल्डहुड पीरियड था जिसके अंदर आप इसको मोटिवेट कर सकते थे, लेकिन नहीं किया गया। विड्रॉ की सोशल एक्टिविटी को गेम खेलता रहा, वो ला के खाने देते रहे, वो खाता रहा, आगे चले। टीनेजर पीरियड में आया, अब आया स्कूल, हाई स्कूल में। अब यहाँ पे जो है ना ये फुटबॉल इसने खेलनी शुरू की डिफेंस लाइन में, क्योंकि भाग नहीं सकता था, तो डिफेंस पोजीशन में या गोलकीपर बना दिया, या उसको जो है डिफेंस जो फर्स्ट पर्सन होता है रोकता है जो गोल, वहाँ पर लाइनमैन बनाया। परफॉर्मेंस बढ़ती थी, सारी बातें वो रोक लेता था। गेम जब होती थी फुटबॉल की तो वो जब आती थी तो उसको टक्कर मार देता था। ये सब वो काम कर रहा था, लेकिन उसमें इतनी एनर्जी जो है ना वो नहीं होती एक्सपैंड। जो आदमी जो
आगे लड़ते हैं, आगे जो जिसको आप कहते हैं कि लेफ्ट साइडेड और राइट साइडेड होते हैं या स्टोकर्स होते हैं जो गोल करने के लिए, वो भागना पड़ता है उनको। इसको नहीं भागना पड़ता। ये तो गोलकीपर की तकरीबन, गोलकीपर भी फिर भी एक्टिविटी करता है, ये तो खाली गेंद रोकता है, आने वाले को टकरा जाता है इसके साथ या उसको टंगड़ी मारता है, कुछ भी करता है। इससे उसको इतना फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन उसको ऑफ़र की स्कॉलरशिप टू प्ले फुटबॉल, क्योंकि वो अच्छा डिफेंस करता था और उसने कॉलेज को लीड किया। तो उस वक्त उसकी 6 फीट 5 इंच कद था और 315 पाउंड अपने वालिद के बराबर हो गया 16 साल में, माशाल्लाह। उसको नहीं मालूम है आइंदा क्या होने वाला है। मैं ये इसी नहीं दिखा रहा हूँ आपको क्या हो रहा है। अब यूथ पीरियड शुरू होता है, यानी ओ लेवल। चलो ओ लेवल में आया तो उसने हाइपर एक्सटेंशन नीज में जो है ना, इसको मेनिस्कस टियर हुआ होम कमिंग गेम में। अब उसको पता चला कि टियर हो गया है, मेनिस्कस नी जॉइंट डिसऑर्डर हुआ उसको, ट्रॉमेटिक। अब उसने कहा कि भाई ये लंगड़ा के चलने लगा, तो फिर उसने स्टडी को ध्यान देना शुरू किया। तो अल्कोहल भी पी रहा है, पार्टी में भी जा रहा है, वजन और बढ़ रहा है, बफेलो चिकन खा रहा है, ये नाचो पिज़्ज़ा, बस ये खा रहा है और घर के अंदर वो रहता है, क्योंकि उसको अब इसको नहीं खेल सकता फिजिकल एक्टिविटी। हालांकि आप बता सकते थे कौन सी फिजिकल एक्टिविटी करे। अगर मेनिस्कस टियर हो भी गया था तो दूसरी एक्टिविटी पे लाना चाहिए था, नहीं लाए वो। सेकेंड डेकेड ऑफ लाइफ में जो है ना, ये पेशेंट जो है ना 400 पाउंड का हो चुका है, 24 साल की उम्र हो गई है। और अब जो है ना, इसको ये है कि इस पेशेंट के साथ ये हुआ, इसने कहा बास्केटबॉल आसान है, बास्केटबॉल में इतना नहीं भागना पड़ता शायद, लेकिन वो भाग नहीं सकता था, अपने आप को थक जाता था। 400 पाउंड का आदमी अगर लंबा तो है ये, जहाँ उसको मिलेगी गेंद वो तो बास्केट में डालेगा, लेकिन भाग नहीं सकता ना, और थक जाता था। फिर इसने कहा कि छोड़ो जी, घर के अंदर बैठो। अनसोशल हो गया, डिप्रेस हो गया, माइल्ड डिप्रेशन से मॉडरेट डिप्रेशन में चला गया। सेकेंड डिकेड ऑफ लाइफ में क्या हुआ कि फिर 1 घंटे के लिए उसने जो है ना वो गेम में वापस आया। स्ट्रेन सेंसेशन इसको महसूस करता था पेशेंट, यहाँ पे कि जॉ में हो रही है और चेस्ट में हो रही है, लेफ्ट आर्म में हो रही है, और ज़रा सा ज़्यादा वो करता था, जिसको आप क्लॉडिकेशन कहते हैं। वो सिम्टम आ गए जब वो आया दोबारा गेम में। फिर वो जब उसको एवोलेट किया गया ईसीजी में, तो मालूम चला कि उसको जो है ना वो ST एलिवेशन आ रहा है। और उसको जो है ना एट दैट टाइम जब उसको ये अटैक हुआ पहली मरतबा, तो मालूम चला कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया। अब उम्र देखिए इसकी बराबर है, 24 साल की उम्र में मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, ST एलिवेशन। और साथ साथ जब जो कर रहे थे, जो प्लास्टिक वगैरह जब किया उन्होंने, पता चला कि इसके पास जो है ना ये टाइप 2 डायबिटीज तो हो चुका, हाइपरलिपिडेमिक भी था, हाइपरटेंसिव भी था, और माइल्ड किडनी डिजीज भी थी, इसे नेफ्रोपैथी कहते हैं। हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी भी हो गई इसको। तो इसी लाइफ के अंदर जो है ना पेशेंट ने जो है वो अपने ऊपर थोड़ी तवज्जो देनी शुरू की। और जाहिर है 25 साल की उम्र में एक आदमी को इतनी बीमारियाँ हो जाएँ, मॉनिटर किया पहले तो शुरू में, फिर बाद में छोड़ दिया। कौन रोज़ाना अपना खून निकालेगा, कौन टेस्ट करे। लिहाजा वो बुलाया जाता था और वो इंसुलिन पर ऑफ़र की गई, क्योंकि वो दवाइयाँ खाने में सुस्त था। तो इंजेक्टेबल पर लेके आया। इंसुलिन जो होती है आपको पता है वेट गेन करती है, लेकिन ये भी हायर इंसुलिन डोज, क्योंकि ये है इंसुलिन रेजिस्टेंस मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। भाइयों में हुआ ये कि किस्सा जो तमाम ये हुआ कि ये जो है ये जहाँ बाहर निकलना बंद कर दिया, रेस्टोरेंट में जाना बंद कर दिया, घर में ऑर्डर कर दिया, पिज़्ज़ा खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये सारे काम जारी रख रहा है। अर्ली 30s में इसके साथ बस A1C लेवल 10.5% हो गया, जबकि ये इंसुलिन भी ले रहा है और अपनी कुछ दवाएं खा लेता है, कभी नहीं खाता, और कभी डॉक्टर के पास जाता है, कभी नहीं जाता। लिपिड लेवल्स इसके कितने हैं इसको नहीं पता, इसको नहीं पता कि इसका यूरिक एसिड लेवल क्या है। फिर दोबारा कैथेटराइजेशन एक और एंजियोप्लास्टी की गई इसको, देखिए ना, पहले एक की गई थी, अब डबल की गई। ब्लड लीडर नाइट्रोजन क्रिएटिनिन जो है डेंजरसली हाई हो गए। अब ये नेफ्रोपैथी हो गई डायबिटिक इसको, और हेमोडायलिसिस भी चला गया मरीज 3 डेज वीक के अंदर बाद में। यानी इसके साथ जब ये हुआ, जब सेकेंड दफ़ा
उसको अटैक हुआ है और लेके गए हैं, तो अब मालूम ये चला कि इसके अंदर जो है वो क्रॉनिक रीनल फेलियर में पेशेंट चला गया है। अर्ली 40 तक ये रहा बंदा, उसमें डायलिसिस पे चल रहा है मुसलसल, 5 साल तक डायलिसिस होती रही, जिसको डोनर भी नहीं मिला है अभी तक। और फिर पेशेंट जो है ना डायबिटिक रेटिनोपैथी भी डेवलप हुई, जिसको याद रखें नेफ्रोपैथी होती है उसको रेटिनोपैथी भी डेवलप हो जाती है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वो जो है ना वो उसको जो है ना अल्लाह ने जो है ना वो 42 साल की उम्र जब अता कर दी तो मासिव माइक्रो इन्फेक्शन में थर्ड अटैक है। एट दिस टाइम ये उसको ब्लाइंड हो गया और डायलिसिस पे चला गया, यानी कंप्लीट डायलिसिस की बात हो रही है, इंटरमीडिएट डायलिसिस की बात नहीं हो रही। एंड क्रॉनिक ओपन वूंड भी इसको डेवलप हुआ पेशेंट को साथ में, और उसके वजह से कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुई एंड पेशेंट की जो है ना वो प्रीमेच्योर डेथ हो गई, हालांकि उम्र अभी इसकी 41-42 साल है। अब ये देखिए कि इस कहानी के अंदर जो है ना वो बचपन से लेके और इसके इंतकाल तक जो है कितनी गलतियाँ हुई हैं, ये ज़रा सोचिए। तो लेसन गेन बाय द सिनेरियो, जब ये सुनाया है मैंने, क्या आपने लेसन हासिल किया? यानी टुडे obese child will be more prone to develop bundle of complication in future life leading to high mortality rate, to prevent it before it kills। इससे पहले कि वो मारे आप उसको मारते हैं। हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, इस गम को मार डालो, इस डिजीज को मार डालो। तो लास्ट नॉट लीस्ट स्टेटमेंट बाय मैं जो कहूँगा वही कहूँगा, ओबेसिटी इज प्रिवेंटेबल डिजीज है अगर सही तरह से की जाए। बचपन से इसको चेकआउट करें। यू कैन डू इट टू ग्रो योर नेशन हेल्दी एंड वेल्दी। अगर ऐसे करेंगे तो आपकी नेशन जो है वो हेल्दी होगी, और जब हेल्दी होगी तो काम भी करेगी, जो काम भी करेगी तो हेल्दी हो जाएगी। एक्नॉलेजमेंट है, ज़ाहिर है जावेद इन्होंने सुपरवाइज़र हूँ मैं, डॉक्टर प्रोफेसर अली हैदर मेरा नाम है, और सुपरवाइज़ किया मैंने इनके इस जो प्रोजेक्ट को। और साथ में जो है ना मैं आपसे ये कहूँगा, अपील करूँगा कि मेरे पास जो है ना मैंने मिपमी के नाम से जो है ना एक चैनल है मेरा, इसका नाम है प्रोफेसर अली हैदर इंटरनल मेडिसिन, लिखे यूट्यूब पे। अभी तक 125 इसमें वीडियो अपलोड हो गई हैं, अभी 350-400 और रहती हैं। तो वहाँ पे इसको आप निकालेंगे तो आपको तमाम जो है ना अपने काम की वीडियोस मिल जाएंगी, चाहे आप अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, पढ़ रहे हो, सीखना चाहते हो, जनरल प्रैक्टिशनर हो। अगर ये आपने सब्सक्राइब किया चैनल को और 1000 से ज़्यादा हो गए सब्सक्राइबर, तो ये परमानेंट हो जाएगा चैनल, ये इसको कोई डिलीट नहीं कर सकता, फॉरएवर हो जाएगा, आपकी नस्लों को भी फ़ायदा हो जाएगा। तो क्या हुआ कि सदका जारी है। प्लीज़ इसको सब जो लोग भी अभी अटेंड कर रहे हैं, अभी इसको प्रिस्क्राइब करें, इसके सब्सक्राइब करें। अगर 40 आदमी है तो कम से कम 40-50 आदमी तो सब्सक्राइब अभी कर दें। आपको फ़ायदा, आप पढ़े ना पढ़ें बाद में वो अलग बात है, लेकिन सब्सक्रिप्शन इसका होने से फ़ायदा ये होगा कि जो पढ़ना चाहते हैं लोग उनको फ़ायदा हो जाएगा, तो सदका जारी हो गया ना। आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने मेरी इतनी लंबी चौड़ी तकरीर को सुना। हाईली थैंकफुल टू यू। आई होप कि आप इसको फॉलो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वमा अलैना इल्लल बलाग।